तो अभी चेक करना स्टार्ट कर लो, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम रहा तो यू कैन मैसेज मी, so that like till the end of a class we try that we complete the class in 10 to 12 days. Yes, already we have completed the one session on data IP, right? So during this time period, if you want to like check, let your resume be checked right from me, so you can like send me and I'll check your resume. If there is any correction, I will tell you. Okay. So this type of thing we can do. Fine. So yesterday we have started with the data IQ in which we have seen some steps, right? तो डेटा एक पूरा अगर आपको एकदम स्टार्ट से एंड तक बताना रहा तो अपने को 4-5 दिन भी कम गिरेंगे, राइट? तो व्हाट वी कैन डू, we have completed the basic part. I have given you the basic understanding of tool. Okay. Today some more concept I will tell you. After that we start with either if time permits, if time is there, so we'll start with Excel part. Otherwise we'll start with the company culture and workflow. Okay. You will get the questions. आपको questions पूछते हैं ऐसे इंटरव्यू में कि जो आपका टीम का साइज था, what was your team size, how was your working flow, how you work, राइट? इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछते हैं। आपका स्क्रम कैसा था, डेली कॉल कैसे होते थे, मैनेजर क्या करते थे, राइट? मैनेजर व्हाट यूज्ड टू से, डेली कैसा होता था, कॉल फर्स्ट होता था कि लास्ट में होता था, राइट? पीओसी थी, एलटीपी था, तो ये क्या क्या थे, ठीक है? इस टाइप से आपको क्वेश्चनिंग होती है, तब जाके तब वहां पर क्या होता है, आप थोड़ा स्टक हो जाते हो कि ये डब्ल्यू पूछ लिया उन्होंने, हाउ योर डब्ल्यू, so you don't know WBI character. If they are talking in terms of like deliverable, like what you are like delivering to the client, okay, a pilot project, all these things. So you stuck at this point. Akshay, are you there? You have to admit. Uh, Akshay? Yes, sir. I'm in meeting. Okay, okay. Please Yeah. admit. Yeah. तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो व्हाट वो तब पे क्या होता है, आप स्टक हो जाते हो कि इसके आस्क यू लाइक हाउ वाज योर WBR व्हेन यू हैव यू प्रेजेंट द क्लाइंट, ओके? तो आपको WBR क्या रहता है ये पता नहीं रहता, तो इस स्टेप पे वहाँ पे स्टक हो गए तो थोड़ा डाउटफुल हो जाता है काम। तो उसके लिए एक सेशन रखा था मैंने, दैट इज बेस्ड ऑन दी कंपनी वर्कफ्लो एंड कल्चर, right? So that if anyone asks you any question based on like some slangs, corporate slangs, so you'll be able to understand those things and you can answer those, right? So data IQ we have started. Let's complete that part in short period of time. Okay, I will not like take more part. Okay. Yesterday we have done with some recipes. We have seen the prepare recipe, right? In prepare recipe, we have filtered the data. We have like passed the date to the like from unpassed date to the past, right? This type of things we have done. After that, we have selected some specific features from the data set. We have done keep and drop for the particular column. We have renamed the column, right? There are n number of things we can do in machine learning. Okay, so for that purpose, like this, you have to explore. Today, what we'll do, Hello. we'll try. Yes. Sorry to disturb you, sir. Actually, we are able to hear you, but the quality, we are not Oh, able to. The quality is very, bad. okay, okay. So, can you please again reply me? Is it now okay? Is it now It's okay? it's better now, sir. But Okay, fine. we are getting the same disturbance. Sorry, but like my voice is low today. That or there is problem also, right? Okay, fine. So is it okay now? Clear? Yeah, it's better, sir. Okay, fine. Okay, fine. So okay, I will try to speak loudly and I think connection is okay. There is problem in my voice. Okay. So देखो आपको क्या करना है अभी, आपने कुछ रेसिपीज अपने यहाँ पे ट्राई करेंगे, कुछ आप ट्राई करो, ठीक है? Like we'll try some group by recipes. If you see here in data set, आप ग्रुप बाय कैसे करते हो पाइथन में? Can anyone tell me how you do, like अगर आपको ग्रुप करना है, by grouping एग्रीगेट करना है डेटा को on the basis of some particular groups or like conditions, so how you can do it in Python? By using pandas function, sir. Pandas function. Okay, which pandas function you have used till date? Pandas group by, sir. ग्रुप बाय किया है। अगर आपको एग्रीगेशन करना है तो आपने क्या क्या यूज किया एग्रीगेशन करने के लिए डेटा में? हैव यू यूज पिवट टेबल? पिवट टेबल यूज किया आपने pandas में? No, sir. ओके, पिवट भी यूज होता है, ठीक है? देखेंगे अभी
जब पाइथन स्टार्ट होगा तो जो जो नहीं हुआ है, जो आपको मतलब एटलीस्ट यूज होता है, वो भी देखेंगे. फाइन. So let's start to group on some dates. I think that there are different multiple dates are available. Okay, so we can now try on grouping on date or okay, any other feature we can try. So there is one recipe called as the visual recipe. देखो दो types के है यहाँ पे, visual recipe and code recipe है. The question is there like can you take of visual recipe? This type code recipe. I will go. स्टार्ट है, शुरू है आपका ऑलरेडी, राइट? तो अभी पढ़ाई करते हो, क्या करो ना, जब भी पाइथन का कुछ कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो मशीन लर्निंग का, तो मल्टीपल डेटा सेट के ऊपर काम करके देखो और उसको एक सिंगल यूज केस बना के देखो. ओके, अगर आपके पास ट्रांजैक्शन डेटा, देन सेल्स डेटा, सॉरी ट्रांजैक्शन डेटा, स्टोर डेटा, सप्लायर डेटा, इस टाइप से कुछ, अगर सप्लाई चेन के बारे में बात कर रहा हूँ, इस टाइप से कुछ अवेलेबल है, तो यू आर हैविंग एन नंबर ऑफ डेटा सेट. सिंगल डेटा सेट पे नहीं होता है काम, राइट? तो सिंगल मल्टीपल डेटा सेट से आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू क्रिएट द पर्टिकुलर डेटा सेट फॉर द पर्टिकुलर यूज केस, राइट? इस तरीके से काम होता है. दैट्स व्हाई आई गिवन द एन नंबर ऑफ डेटा सेट्स टू यू. सो ट्राई टू वर्क ऑन दोस डेटा सेट. उसके अंदर क्या करो, डेटा सेट के ऊपर एग्रीगेशन करके देखो, ग्रुप बाय करके देखो, कुछ वैल्यूज को अगर आपको ज्वाइन करना रहा और पर्टिकुलर एक कॉलम बना रहा, ठीक है, तो ऑपरेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन यू कैन परफॉर्म. इन आवर पाइथन सेशन विल ट्राई टू टेक द एग्जांपल्स, मींस ओनली जिसे आपको पता है, नॉर्मली कंसेप्ट पता है, सो विल ओनली ट्राई टू टेक सम एग्जांपल्स एंड लाइक ask question or like interactive session will be there. Okay, इस टाइप से कुछ देखेंगे. फाइन. तो अब देखो यहाँ पे क्या है, विल टेक दिस एंड विल डू द ग्रुपिंग. ओके, तो इट विल आस्क इनिशियली फॉर बाय विच यू हैव टू ग्रुप. ओके, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, देन आफ्टर दैट यू कैन चेंज. ओके, बाद में चेंज भी कर सकते हैं. सो वी कैन क्रिएट दिस रेसिपी. सॉरी. ओके, सो नाउ देखो यहाँ पर क्या है, ग्रुप बाय डेट, राइट? यू कैन ऑल्सो एड सम अदर एलिमेंट बाय विच यू वांट टू ग्रुप. लेट्स से सब रीजन. ओके, जैसे आप करते हो ग्रुप बाय, देन यू कैन पास द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स दैट ऑन विच यू हैव टू ग्रुप बाय, राइट? ये आप कर सकते हो. आफ्टर दैट आपने ग्रुप बाय में क्या यूज किया था, ग्रुप बाय में आप एग्रीगेट कर सकते हो. सपोज कुछ कॉलम्स की आपको सम चाहिए, कुछ कॉलम्स का काउंट चाहिए, कुछ कॉलम्स का फर्स्ट ही एलिमेंट चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए, राइट? तो कर सकते हैं आप ऐसे पाइथन में ग्रुप बाय यूज करके एग्रीगेशन कर सकते हो परफॉर्म. तो उसी टाइप से एग्रीगेशन आप यहाँ पर भी कर सकते हो. इफ यू वांट लाइक दिस फीचर्स only first element or let's say the count, so we can select here count. Okay, if you want the grocery percentage, like if you want the average, you can take the average or you can take the sum. Okay, this is all like randomly I am taking. Okay, we have not like seen the data, we have not studied the data. Fine. And in this way you can group this. If you can like run this, okay, so it will perform the grouping operations on the data, right? So this is a one kind of thing that you can do. After that, most usually we have to like merge the data set, right? So what are the different types of join you have performed? Yes, what are the different types of join you have performed? Inner join, outer join. Inner join, outer join. Enter join, unto join, left join, right join. Okay, have you performed cross operations on data set? No, sir. No, sir. No, sir.
क्रॉस ऑपरेशन परफॉर्म देखो करके देखो, ठीक है। मैं जो जो बताता रहा हूँ एक्स्ट्रा में यहाँ पर, ये क्रॉस परफॉर्म करके देखो, राइट। मैं आपको नहीं आता हूँ तो फाइन, अदरवाइज व्हेन यू स्टार्ट द pandas you'll see. Okay, fine. So now if you want to have like some kind of merging with the other data set, let's say we are having this data set and we want to merge it with the different data set. Fine. So we are having here the join recipe. Okay, in join recipe, what you can do, you can join with which data set you want to perform the join. Let's say and perform if there is something common. Okay, I don't know if there is common anything or not. We'll try, we'll see. Sorry. No join can perform because वहां पर कुछ है ही नहीं अवेलेबल डेटा सेट में, दूसरा देखा था। देखो ऐसे हो जाता है, जैसे रेसिपी फॉर्म करते हैं ना हम, जैसे हम रेसिपी फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, देखो हमने इतना काम किया है कल से, राइट। तो जो भी हमारा काम है वो सारा यहाँ पर विजिबल है। इन केस इफ यू लाइक दिस आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन दिस आउटपुट जो भी आया था, राइट। तो इनिशियल डेटा सेट आपका ये था। अगर इनकेस आपको क्या है यहाँ पर चेंजेस करने हैं, राइट, so you can perform changes here in this recipe. You can open this recipe, you can perform changes, whatever you will perform changes here, that will be reflected in other database also. Okay, so यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हो। ऐसा आप अगर पाइथन में करने जाए तो आपको फिर से वो क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा वहां से, राइट। तो ये थोड़ा एडवांटेज बोल सकते हैं आप डेटा का, यहाँ पर सारा फ्लो आपको विजिबल रहता है, यू कैन परफॉर्म इट, राइट। Okay, now let me join with itself so that like I don't know the exact columns which are available. And let's say with the other data set, you can perform join operation. There must be something common. हाँ, यहाँ पे common है, ठीक है। सब रीजन 1, सब रीजन डेट, ओके, वी कैन परफॉर्म join on them. अब join operation कैसे परफॉर्म करते हैं आप pandas में, that let's say like if you want to merge, okay, so what you do, df1, suppose you want to merge df1 with the df2, okay, df1 dot merge, then we have to write df2, then after that what is the parameter, next parameter you have to write, what is the next parameter? Join is equal to what is the next parameter? देखो भूल गए क्या, देखो क्या करते हैं, when you have to do the merging, okay, so क्या करते हैं आप, df1 dot merge, ठीक है, then after that with which data frame you want to merge, that you have to place the name there, okay, df1 dot merge df2, right. After that on which columns, yes, correct Mahesh, on which columns you have to perform it, okay, so we have to specify the names of the columns, on which columns you have to perform the merge, and how you want to perform the merge, okay. So how you can perform the merge, it can be left, right, okay, inner, outer, okay, whatever the joins that you have studied, you can perform there, right. So this type of things can be done. क्रॉस भी होता है, ठीक है, देखो करके, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो भी, फाइन। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी कौन सी स्टेज है, दिस इज ऑन पर्टिकुलर कॉलम्स, राइट। तो विल गो, वी हैव सिलेक्टेड दिस, राइट, selected columns, okay, we'll see other options also, fine. So here we are performing this, okay. So join is left join here, you can change the option from here, like if you want to perform inner join, right, right, left, okay, you can perform here, fine. So let's run this. So it will create the data frame that is the result of particular condition that we have specified. So it is like join on date and the subregion, and it is the left join that we have performed. So these type of things we can do, right. So it will take time, we'll let it done here, okay, fine. अब देखो ये सारे operations क्या आप कर सकते हो डेटा पर, then after that if you want to like do the modeling, okay, so I have already downloaded here, uploaded the Iris dataset, okay. So in Iris dataset, there is an option called labs, right? In labs, you have the different kinds of option like AutoML prediction. If you want to do the clustering, अब यहाँ पे you have to specify the target column. Okay, select feature, prediction models, features on, let's say species. Okay, so here we are having the option. You can choose the algorithms. Okay, let's select this, or you can choose the quick prototype. So what it will do, it will like वो खुद से आपको आंसर दे देगा जो बेस्ट एल्गोरिथम रहेंगे उनके, okay. That machine find that DataIQ thinks
उसके ऊपर वो काम करके आपको रिजल्ट दे देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो फीचर्स है दैट यू हैव टू एक्सप्लोर, ठीक है, ये सारे आपको एक्सप्लोर करने हैं। फर्स्ट इज द एल्गोरिथम्स, व्हिच एल्गोरिथम्स यू वांट टू सिलेक्ट, ओके, you just have to toggle these keys. These are the toggle keys. If you want to do the use the gradient tree boosting, if you want to do the logistic regression, decision tree, you can toggle this, right? Then after that, there is hyperparameter tuning. Okay, you can tune the parameter. You can use the grid search, right? Random search. और ये हमने नॉर्मल यूज नहीं किया है, तो ये भी एक ऑप्शन है, राइट? Then after that, for features, we can handle the features. We can either select the feature based on like univariate analysis that we have done, like on the statistics that we have done, right? From that we can select the feature. We can generate the features also here. There are like for generating the feature, like what we need to do in industry, we need to generate like from two features. If we want to derive some other features, okay, so we need to do the hypothesis. So first जो stage रहती है जब data आपका create हो चुका है, after that you need to like brainstorm on the data and you to create the other variables, right, if it is required. जैसे टाइम सीरीज में क्या होता है, टाइम सीरीज में आपके पास एग्जॉग वेरिएबल करके एक फीचर काम रहता है। तो नॉर्मली क्या होता है, यूनिवेरिएट टाइम सीरीज में हम एक ही सिंगल डेट पर ही काम करते हैं और सेकंड जो है आपका आउटपुट, लेट्स से वॉल्यूम, तो वॉल्यूम एंड डेट बस दोनों ही अपने पास रहते हैं। लेकिन अगर क्या होता है, जैसे कुछ एक्सटर्नल फीचर्स जो आपके डेटा में अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ एक्सटर्नल फीचर्स है जो कि उस वॉल्यूम को अफेक्ट कर रहे हैं, राइट? लेट्स से टाइम सीरीज में कैसे होता है, टाइम सीरीज अगर आपने किया होगा, राइट, तो डेट रहती है आपके पास एंड सेकंड लेट से अगर यूनिवेरिएट कर रहे हैं आप तो डेट एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम इज अवर टारगेट, ओके, टारगेट बोल सकते हैं जो फोरकास्ट करना है आपको। फोरकास्ट करना और प्रिडिक्शन करने में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोरकास्ट एंड प्रिडिक्शन? What is the difference between Forecast is based on time. Yes. Yes. It is based on timeline or right, timeline पे बेस्ड रहता है। और in case of forecast, if you want to forecast for next 12 months, so you don't have the data, आपके पास अभी डेटा नहीं है उसका, ठीक है, आपने 12 मंथ का फोरकास्ट कर लिया। बेस्ट एग्जांपल इज वेदर फोरकास्टिंग, वो पहले बता रहे थे, मतलब आपको चेक करने के लिए कुछ नहीं अभी यहाँ पर, राइट, 12 मंथ्स का कुछ चेक करने के लिए, आफ्टर द इवेंट विल हैपन यू विल गोइंग टू चेक, राइट, सो इफ योर मशीन हैज मॉडल हैज परफॉर्म बेटर और नॉट। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अपने पास वेरिएबल्स नहीं रहते, तो वी नीड टू क्रिएट दी वेरिएबल्स, ओके, क्रिएट दी एग्जॉग वेरिएबल, को एग्जॉग वेरिएबल बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये एग्जॉग वेरिएबल क्या रहते हैं, एग्जॉग वेरिएबल बोलो ये टाइम सीरीज में हो गया, नॉर्मल वेरिएबल मतलब जो अपन मशीन लर्निंग में करते हैं तो उसको अपन हाइपोथेसिस से, मतलब उसको, ये दोनों भी हाइपोथेसिस ही है जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं, बट हाइपोथेसिस करके हम कुछ वेरिएबल्स फॉर्म करते हैं, राइट। तो एक वेरिएबल क्या होता है, जैसे आपका वॉल्यूम है, ठीक है, और यू आर लाइक इन 2020, 2021 एंड 22, ये 3 साल क्या थे, कोविड था, राइट। तो अगर आपका वॉल्यूम किसी स्टोर का है, अगर डीमार्ट का वॉल्यूम आपका, रेट से डीमार्ट आपका एक क्लाइंट था और उसका आपको वॉल्यूम प्रिडिक्ट करना है, फोरकास्ट करना है नेक्स्ट 6 मंथ के लिए और नेक्स्ट 12 मंथ के लिए कि कितना वॉल्यूम उसको लगने वाला है पर्टिकुलर एसक्यू का। एसक्यू मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट जो रहता है, ठीक है, एक बाद में बताते हैं, अपन सप्लाई चेन में जाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो कुछ रहता है, एक प्रोडक्ट है आपके पास, उसका आपको वॉल्यूम क्रिएट करना है कि नेक्स्ट 12 मंथ में आपको कितना लगने वाला है, राइट। तो आपके पास तो अभी यही दो डेटा है, डेटा है और वॉल्यूम है प्रीवियस अवेलेबल, राइट, एंड यू वांट टू फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ, बट द फैक्टर्स दैट हैज अफेक्टेड दिस वॉल्यूम इन द ईयर 2020, 21 एंड 22, तो वहां तब कोविड भी आया था, ठीक है। तो कोविड की वजह से अगर आप वो डेटा लेंगे, ये वाला जो डेटा था प्रीवियस का, कोविड के पहले का, 2019 20 के पहले का, तो उसके अंदर क्या था, कोविड नहीं था, तो वहां पे जो रिजल्ट थे, ठीक है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ा ज्यादा थे, ठीक है। कोविड के वक्त अगर वहां पे सेल कम हो गया, मतलब लॉकडाउन था, उस हिसाब से कुछ सेल ही नहीं हुआ, तो वहां पे कुछ फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट कर रहे थे, राइट। So that factors you need to consider. So you need to create some variables by that factor, by that particular date कि इस month में ये था, like in March 2020 लॉकडाउन था तो वहाँ पे जीरो सेल, राइट। तो इस टाइप से आपको खुद से वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ते हैं, और यू हैव टू क्रिएट सम मीडिया वेरिएबल्स आल्सो, व्हाट इज सम न्यूज़ इज गोइंग ऑन, राइट, दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको ये फीचर्स से बताया हमने, ठीक है, फीचर्स में क्या क्या कर सकते हो। फीचर रिडक्शन में आपको पीसीए वगैरह आपने अप्लाई किया है क्या, पीसीए वगैरह? Have you applied PCA? yes. Yes, sir. ओके, ठीक है, तो PCA वगैरह रहता है, ठीक है, कोरिलेशन विद टारगेट ट्री बेस्ड, ये सारा आप कर सकते हो यहाँ पे। तो आई एम नॉट लाइक वर्क
हम ये सब ट्राई करेंगे तो आज के दिन में चला जाएंगे अपना, एंड आई डोंट वांट टू, ठीक है। तो देखो ये सारा आपको एक्सप्लोर करना है, ओके। इफ यू ट्रेन दिस मॉडल यू विल सी सम रिजल्ट, राइट, एंड यू विल गेट द रिजल्ट बेस्ड ऑन हियर यू कैन सी द रिजल्ट विल बी देयर। यू ट्रेन दिस मॉडल, इट्स बाय डिफॉल्ट जो था मैंने वही लिया, ओके। तो यू लाइक रैंडम फॉरेस्ट और लॉजिक सेग्रीगेशन बाय डिफॉल्ट उनका सिलेक्ट था, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट विल गेट रिजल्ट whatever the result will be there, like 1 or less than 1. Okay, logistic is giving 1. Okay, it is also showing some important features. Which are the features which is important? समरी आ जाती है आपके पास। ट्रेन सेट में उन्होंने 123 रिकॉर्ड लिए, टेस्ट सेट में 27 रिकॉर्ड लिए, राइट। हियर इट इज शोइंग द कर्व, ओके, ROC कर्व, राइट। तो ये अपने को यहाँ पर डायरेक्टली मिल जाता है, राइट। तो रैंडम फॉरेस्ट का ट्रेनिंग स्टार्ट मतलब हो रहा है, अभी उनका रिजल्ट नहीं आया यहाँ पर, देखो यहाँ पे शुरू है, ठीक है। तो आपको अगर स्लो लग रहा होगा तो स्लो ये इसलिए है क्योंकि एक तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इसको उनके सर्वर पर, ठीक है, और ये ट्रायल वर्जन है। तो वट एवर द अलोकेशन फॉर रिसोर्सेज दैट इज अलोकेटेड टू मी आर वेरी लेस, okay, they will not going to allocate me like 100 GB of space or like more RAM or anything, okay, they are not going to allocate me. So when we actually work on this data, it will take like seconds, okay, 1 second or 2 seconds में हो जाता है, right? So this is about data IQ. So I hope that you have like got the basic understanding of data IQ and you can work on it if you get a chance. Like you can also give the interview based on the data IQ. Is it okay? Are you comfortable with this? आपको अभी लग रहा है कि कुछ आप बोल सकते हो, एटलीस्ट अगर इंटरव्यू रहा तो आप पढ़ के कुछ आंसर दे सकते हो इसके ऊपर। यस अमित। यस सर, वो एक्चुअली मुझे क्या पूछना था कि इंटरव्यू क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं डेटा आईक्यू पे? हाँ, इंटरव्यू क्वेश्चन देखो, मैंने इंटरव्यू किए थे उसके डेटा आईक्यू के, राइट। मैं स्विच भी किया था, ठीक है। तो जब भी आप मतलब ज्वाइन करेंगे तो 1-2 साल बाद, 2 साल बाद तो आप स्विच करते ही हो नॉर्मली, 2-2.5 साल बाद किए। तो क्या किया ना, मैंने डेटा आईक्यू के इंटरव्यू दिए थे, तो उसमें क्या क्वेश्चन आए थे मुझे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क मी अबाउट द मशीन लर्निंग पूछ लिया, ठीक है। फिर मशीन लर्निंग के बाद क्या पूछा उन्होंने, वो गए बाद में डेटा आईक्यू पे डायरेक्टली, दे विल फर्स्ट चेक योर मशीन लर्निंग नॉलेज, पाइथन नॉलेज, ओके। एक हाथ प्रोजेक्ट करने बोलेंगे, देन ऑन डेटा ऑन डेटा यहाँ where you have performed, how you have loaded the data, how you have done the feature selection, how you have done the imputation. अब देखो imputation का मैंने बताया नहीं, उसमें कॉलम के ऊपर आप राइट क्लिक किया कि वहां पर आप you can fill the values by some values or like mean or anything, okay, ये सब कर सकते हो आप। तो ये सारी बातें आपको पूछते हैं। देन आफ्टर दैट दे विल आस्क यू अबाउट द रेसिपीज, व्हिच रेसिपीज यू हैव यूज्ड व्हाइल डूइंग द प्रोजेक्ट। सो नॉर्मली प्रिपेयर रेसिपी तो यूज होता ही है, ठीक है, प्रिपेयर के सिवा काम ही नहीं होगा। आफ्टर दैट प्रिपेयर, ग्रुप, मर्ज, जॉइन रेसिपी, ये सारी रेसिपी आपने यूज किया। दे विल आस्क यू हैव यू यूज्ड द कोड रेसिपीज, तो कोड रेसिपी कौन सी थी, तो पाइथन कोड रेसिपी थी वहाँ पे, एसक्यूएल थी, पाइस्पार्क थी, ठीक है। दैट आर द कोड रेसिपीज व्हिच आर अवेलेबल टू यू। अब पाइथन रेसिपी कब बताना, जब डेटा कम रहेगा, ठीक है। पाइस्पार्क डेटा ज्यादा रहेगा तब बता सकते हैं आप, लेकिन नॉर्मली क्या है यहाँ पर हो जाता है, नॉर्मली कोड नहीं करना पड़ता है। एंड देन दे विल आस्क यू वेयर यू हैव लाइक डन द मॉडलिंग, वहां पर क्या क्या स्टेप्स आपने परफॉर्म किया। तो वो जो था ना पार्ट जहाँ पे गिवन था कि एल्गोरिथम कितने अवेलेबल है, ट्रेनिंग के लिए आप ये यूज कर सकते हो, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, वो याद रखना कि कहाँ पे क्या क्या था, ठीक है। मतलब कौन से टर्म्स, तो आपको टर्म्स याद रखने हैं, बाकी इसमें कुछ याद रखने जैसा ऐसा डिफिकल्ट एसेस नहीं है। 1 दिन या फिर 2 दिन अगर आपने दिए ना, आज अगर कल अगर आपने दिया, ठीक है, या फिर ये 10-12 दिन में जितना हम अभी करेंगे रिवीजन, उसके सेशन में अगर आपने दिया उसको टाइम थोड़ा, और डेटा एकेडमी पर गए और वहां पर सर्च किया, तो यू विल गेट दी लाइक लर्निंग पाथ्स आर देयर, ठीक है, एंड डिफरेंट लर्निंग पाथ, एडवांस लर्निंग पाथ, बेसिक, लाइक अगर आप बेसिक से स्टार्ट करें, बेसिक लर्निंग पाथ, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। और जो हमने किया वही पार्ट है उसके अंदर, सिर्फ वो स्मॉल वीडियोज है, 2-3 मिनट के वीडियोज है, यू कैन चेक दिस, ओके। एंड सर्टिफिकेशन भी ले लो, ठीक है, सर्टिफिकेशन रहा तो यू कैन टिल दैट यू आर कंप्लीटेड सर्टिफिकेशन। उसको थोड़ा 1-2 अटेम्प्ट लगेंगे सर्टिफिकेशन के लिए, 2-3 अटेम्प्ट जाएंगे, बट कुछ नहीं, सिंपल है, ठीक है, हो जाता है। जस्ट सागर आप कुछ बोल रहे थे सर? अमित सागर। यस सर, वो आपने बोला कोड रेसिपी जब बताना है तब पाइथन का कोड कितना कम रहना चाहिए, मतलब डेटा से पाइथन का बताने के लिए? पाइथन का देखो क्या है ना,
एक मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, देखो मेरे इसमें क्या था, एक पर्टिकुलर उसका रेंज भी है, ठीक है, वो गूगल पे सर्च कर लेना। लेकिन नॉर्मली अगर 25 लाख या फिर 10 to 12 लाख, वो डिपेंड करेगा आपके कॉलम्स कितने, ठीक है, डेटा कितना है। अगर ये रिकॉर्ड इतने रिकॉर्ड है, 15L रिकॉर्ड है, 25L रिकॉर्ड है, ठीक है, 25 में 25 लाख रिकॉर्ड है आपके पास, और कॉलम 10-15 है, तो चल जाएंगे, ठीक है, उसी से काम करता है, थोड़ा स्लो हो जाता है बट काम करता है। उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे, 50L बोलेंगे आप, 50L रिकॉर्ड्स है मेरे पास एंड वी आर हैविंग लाइक 60-70 कॉलम्स, तो वो नहीं होता है, वहां पे डेड हो जाता है, फिर वर्क नहीं करता है। मैंने सीआर पे काम किया था, मतलब जब मुझे नहीं पता था कि इतना वर्क करता नहीं करता, ठीक है। ये संतोष 10 लाख, जनरली 10 लाख बताते जाओ, ठीक है। 10 लाख ऐसा आप बोल नहीं सकते कि 10 लाख मतलब रिकॉर्ड 10 लाख, वो डिपेंड करेंगे आपकी लेंथ ऑफ फीचर्स, हाउ मेनी फीचर्स। अगर आपके पास 2 ही फीचर्स है फिर तो आपको 10 लाख से ज्यादा भी चलेंगे, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फीचर्स। एक ऐसा याद कर लो कि इतना ही मुझे बताना है कि 10 फीचर्स थे, 12 फीचर्स थे या 15 फीचर्स थे, ओके। उसके बाद में 10 to 12 लाख रिकॉर्ड थे, इस टाइप से आप बता सकते हो, ठीक है। और अंकुर आप क्या बोल रहे फ्री ट्रायल, हाँ रजिस्टर करो, देखो फ्री ट्रायल जो है ना, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ्री है, सब कुछ फ्री है। लेकिन पहले क्या करो, पहले डेटा क्यू के वीडियोस देखो, उसके बाद में ही आपको ये करना है, मतलब ट्रायल वर्जन लेना है, क्योंकि ट्रायल वर्जन सिर्फ 15 दिन का है। अभी नेक्स्ट बैच में मैं डेटा क्यू पढ़ा भी नहीं सकता, क्योंकि डेटा क्यू का मेरा ट्रायल आज खत्म हो रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई हमने फर्स्ट सेशन डेटा क्यू का लिया, right? तो उसके बाद में हाँ, लिमिटेशन इसके आप बोल सकते हो कि थोड़ा अभी जैसे 10 साल हो गए इसको अभी स्टार्ट हुए, लेकिन फेमस अभी हो रहा है, मतलब वर्किंग में अभी ज्यादा आ रहा है। तो जो इसके अंदर रहते हैं ना मॉडिफिकेशन वर्जन निकलते हैं, वो थोड़ा अभी स्टार्ट हो रहा है। तो थोड़ा जो स्पीड के ऊपर जो मैंने बोला आपको कि डेटा जब बड़ा रहता है तो टाइम लगता है, थोड़ा सर्वर इशू रहता है, तो उससे थोड़ा वर्क शुरू है इनका। लेकिन दे आर लाइक डेवलपिंग इट लाइक एनीथिंग, लाइक आप सोचेंगे कि इतना सब कुछ कर सकते हैं तो हमारी जरूरत ही क्या है, यानी अपनी नौकरियां खतरे में है, ऐसा बोल सकते हैं ना, ठीक है। अगर ये काम अगर एक इंसान कर रहा है, एक इंसान कर सकता है एक दिन के अंदर, तो यू कैन थिंक लाइक व्हाट इज डिसरप्शन लाइक दिस लो कोड नो कोड इज मेकिंग इन इंडस्ट्री, फाइन। सर आपण आता जे मॉडेल ट्रेन केलं ना ते आपण त्याचे पिकल फाईल सेव्ह करू शकतो आणि प्रेडिक्शन्स करू शकतो का? करू शकतो. त्याचं काय असतं, आपण त्याचे हे जे असतात ना मॉडेल आपण जे ट्रेन करतो, तिथे तुम्ही डिप्लॉयमेंटचं पण ऑप्शन असतं. डिप्लॉयमेंट आहे एक, माझ्याकडे सेशन पण असेल त्याचं, मी पाठवतो, ठीक आहे. कालचा डेटा सेट पाहिले का तुम्ही, बघितले का सगळ्यांनी? यस, आपने देखे कल के डेटा सेट, वो देखो उससे वर्क करो। वो इसलिए भेजे मैंने 15-20 डेटा सेट, कि आप उसके ऊपर एज ए कंपनी जैसे वर्क करते हो। सिंगल डेटा सेट पे काम मत करो अभी, ठीक है। वो सिंगल डेटा सेट पे काम करते करते फिर वो इंटरव्यूज में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मल्टीपल डेटा सेट पे काम करना, देखो उसको मतलब डेटा क्रिएशन पे वर्क करो। प्रोजेक्ट्स आपने किए होंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे या फिर डायरेक्टली सिर्फ आपने ओरली बताया सर प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स किए थे सर। किए थे ना, ठीक है। Yes. प्रोजेक्ट करके रखना था वैसे, और मतलब मशीन लर्निंग आर्किटेक्चर, डेटा आर्किटेक्चर ऐसे बना के प्रोजेक्ट किए थे कि डायरेक्टली सिर्फ इंप्यूटेशन करके वहां से स्टार्ट किया था ईडीए से? ईडीए से किया था एक्चुअली। ओके, तो बताते वक्त ईडीए से नहीं बताना, ठीक है। अभी जो हम सेशन लेंगे उसके अंदर देखते कि प्रोजेक्ट कैसे बताना है, कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। आई थिंक हाफ सर बोला डेटा इको पे सर डीप लर्निंग एनएलपी के भी प्रोजेक्ट रन होते हैं क्या, हाँ, मतलब ऐसा? होते सब प्रोजेक्ट होंगे, टाइम सीरीज, डीप लर्निंग, एनएलपी, मशीन लर्निंग सब हो जाता है आपका, ठीक है। सब कुछ ऑपरेशन परफॉर्म्स होते हैं सब जैसे कुछ कि सब होता है, मतलब ए टू जेड मैं बोलता हूँ ना, सब कुछ होता है। इनकेस अगर आपको कुछ भी नहीं आया वहां पे परफॉर्म कर दे, तो उन्होंने एक ऑप्शन भी रखा है आपके पास, यू कैन डू बाय कोडिंग ऑल्सो, ठीक है। कोडिंग से भी कर सकते हो आप। सर डेटा इको अगर हम लोग को जरा डीप में सीखना होगा तो डेटा साइट ही रेफर कर सकते हैं, ये डेटा इको की साइट ही रेफर कर सकते हैं, या उसके लिए कोई नहीं, दूसरा यूट्यूब ऑप्शन चैनल भी नहीं, इसका रेफर? एक लिमिटेशन बोल सकते हैं। जैसे आपने एक क्वेश्चन लिखा ना, लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेशन ये है इसका कि इसके रिसोर्सेज जो है ना वो पब्लिक नहीं है। पब्लिक मतलब उनके ही साइट पे है, बस वहां पे फ्री है, वहां पे फ्री है, बट क्योंकि ये पॉपुलर ज्यादा नहीं हुआ था, तो यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ डाउनलोड कैसे करना है, उसका ट्रायल कैसे लेना है, बेसिक बेसिक वीडियोस दिख जाएंगे आपको, पूरा प्रोजेक्ट में दिखेंगे, ठीक है। एक मेरे पास प्रोजेक्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यूडेमी का इज नॉट कंपल्सरी, लेकिन अगर आपको देखना हो, यूडेमी वगैरह यूज करते होंगे आप? ये जो आपको मैंने प्रोवाइड किया ना डेटा सेट, वो इसमें से थे। तो ये मैंने पेड पेड कोर्स है ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है ना, अगर आपको पूरा प्रोजेक्ट इसके ऊपर एक बार करके देखना है, तो डेटा सेट जो मैंने आपको प्रोवाइड किया ना,
आप तो उसमें से वो डेटा सेट लो एंड जो स्टेप्स यहाँ पे सिखाई जाती है डेटा एकेडमी में, जो अपने क्लास में भी लिया है या फिर सिखाई जाती है, वो आप यहाँ पे परफॉर्म करके देखो डेटा सेट के ऊपर। तो ये पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने एक बार बताया। जैसे यहाँ पर डिप्लॉयमेंट अगर देखते हैं, डिप्लॉय मॉडल, तो यू कैन सी हियर, इज इट ऑडिबल टू यू? आवाज आ रहा है आपका? आवाज आ रहा है किसका? नो सर। हाँ नो सर। ठीक है, आवाज उधर नहीं आएगा, लेकिन ये ऐसे आप सर एक क्वेश्चन था कि डेटा आईक्यू में प्री प्रोसेस डेटा ही अपने को देना पड़ता है उसको, मतलब सब ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं जैसे कि ईटीएल वगैरह जो है ना, डेटा इंजीनियर पर। डेटा इंजीनियरिंग का एक्चुअली वो काम कैसा रहता है उनमें, क्या देखो बताता हूँ आपको। एक ही आपकी टीम में रहती है काम करने के लिए। इंडस्ट्री में क्या रहते हैं, जो डेटा इंजीनियरिंग काम करता है वो टीम अलग रहती है। आपका एमएल वाला जो डेटा साइंटिस्ट का टीम है, वो स्पेसिफिकली फोकस रहता है डेटा पर, मॉडलिंग के लिए डेटा कैसे आपका प्रॉपर बन जाए। ठीक है, प्रॉपर बन जाए मतलब डेटा तो आपको मिल गया, फिर उसके अंदर आप सीखते हो डेटा से, डेटा में क्या क्या अवेलेबल है। तो थर्ड टीम रहती है आपकी डिप्लॉयमेंट की। ओके, उसके बाद एक टीम रहती है, वो रहती है आपकी बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है, बिजनेस टीम रहती है। 3 या 4 टीम रहती है हर कंपनी में। तो बिंदास बताओ, अगर आपको किसी ने पूछा भी कि देखो सिलेक्ट फॉर 1 ईयर, हाँ तो बिंदा, हाँ संतोष बताते हैं उनको। तो बिंदास बताओ कि उनको क्या बता सकते हैं आप कि टीम थी हमारे पास, कि उसने बोला कि आपने डिप्लॉयमेंट नहीं किया है। कुछ जगह पूछते हैं ऐसे कि डिप्लॉयमेंट नहीं किया आपने, तो नहीं किया है, नहीं रहती टीम वहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास टीम। ठीक है, कंपनी अमीर है तो बोल सकते हैं है हमारे पास अच्छा रिसोर्सेज अवेलेबल था। स्मॉल कैप कंपनी जो रहती है ना, जो छोटी छोटी कंपनी रहती है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम जाता है, उसमें सब अपने को करना पड़ता है, वो डिप्लॉयमेंट भी अपने को सीखना पड़ता है। तो ट्राई करो, अगर आपको मल्टीपल ऑफर आते हैं तो कैन गो फॉर लाइक मिड स्केल कंपनीज। ओके, नॉर्मली एमएनसी में भी मिड स्केल रहती है तो वहां पर जा ही सकते हैं अपन। एंड जो बाकी कंपनी रहते हैं जो आपको ब्लॉक करने के लिए सीधे जाना है वहां पर, तो वो तो आपको जयेश सर होगा जब सेशन लेंगे एचआर का, तो उसमें बताएंगे। ठीक है, तो अब अपना आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका है एंड लैक ऑफ टाइम। हाँ संतोष, प्रोजेक्ट फॉर 1 ईयर, हाँ प्रोजेक्ट फॉर 1 ईयर मैं वही बता रहा था अभी। जो मैंने डेटा सेट प्रोवाइड किया ना आपको, वो डेटा सेट का क्या करो, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकालो। ठीक है, मैं लगे तो इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ा तोड़ मोड़ करके, मतलब जो चैट जीपीटी पे डालो उसके थोड़े मल्टीपल ये निकालो। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट डाल के आप बता सकते हैं कि वो डेटा सेट पे हमने काम किया था और जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया ना, तो वो स्टेप इन्होंने भी फॉलो किया है, प्रॉपर स्टेप फॉलो किया उन्होंने। ठीक है, डिप्लॉयमेंट तो आपने नहीं किया, डिप्लॉयमेंट आई डोंट हैव एनी नॉलेज ऑन डिप्लॉयमेंट, सो लाइक विदाउट हैविंग लाइक जस्ट बताने से बताना ऐसा नहीं किया मैंने। डिप्लॉयमेंट से आप यहाँ पर डेटा एक्यू में अगर देख सकते हो, डेटा एकेडमी में कुछ होंगे वीडियोज होगा तो देख लो एखादा, तो आप बोल सकते हो। डिप्लॉयमेंट से पहले इवेलुएट तक नॉर्मली आपका काम रहता है, उसके बाद का काम का टीम ही अलग रहती है पूरी। फाइन, तो इसको देखो, वो डेटा सेट को मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट भेजता हूँ, 1 साल के लिए एक्सटेंड करो। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आते हैं कॉल, ठीक है, और डेटा एक्यू पे स्पेशली कॉल आते हैं। अगर अभी एकदम से नहीं आया, लेकिन एक आधी बार उनको रिक्वायरमेंट ज्यादा है लेकिन लोग नहीं है वहां पर। देखो यहाँ पर क्या होगा ना, अभी एमएल इसमें डिमांड और सप्लाई का पूरा प्रॉब्लम है। सप्लाई ज्यादा हो गया, डिमांड कम है, अभी कम हो रही है। ठीक है, लेकिन अभी डिमांड और बढ़ेंगी। ठीक है, कुछ दिनों बाद जैसे ये साइकिल रहती है, टाइम सीरीज जैसा सीजनलिटी रहती है, या फिर बोल सकते हैं अपन की कुछ पॉइंट के लिए थोड़ा रिक्रूटमेंट कम हो जाता है। कुछ कंपनीज का ईयर ऑन ईयर जो रेवेन्यू है वो अभी कम हो चुका है, तो दे आर नॉट गोइंग टू लाइक रिक्रूट एनी अदर कैंडिडेट रिसोर्सेज। कुछ उनके रिसोर्सेज बेंच पर है। ओके, दे आर ऑल्सो प्लानिंग लाइक जो बेंच पर जो रिसोर्सेज है उनको ही तो वो रखने के लिए भी ये कर रहे हैं। राइट, तो ये सारी चीजें शुरू है ना, तो 1 साल के लिए आप ऐसा बोल सकते हो कि मतलब जो पॉइंट था, फॉरगॉट व्हाट पॉइंट। तो ये सारी चीजें रहती है। 1 साल का बोल सकते हैं डेटा, क्योंकि क्या जो है 1 साल का एक्सपीरियंस बताओ, उससे ज्यादा बताओ मत, क्योंकि नॉर्मली वर्क किया ही नहीं है। अगर आप बोलेंगे ना 3-4 साल किया है, तो नॉर्मली तब इतना ये नहीं था, ये फेमस नहीं था या फिर इतना वर्किंग में नहीं था। यूएस में अभी इसका कल्चर ज्यादा हो गया। ठीक है, नॉर्मली उनके वहाँ के जो डेटा साइंटिस्ट रहते हैं, 2 टीम रहते हैं, जब पीओसी रहता है अपना या फिर कोई एटीपी रहता है, तो उधर की एक टीम रहती है डेटा साइंटिस्ट टीम। अगर वो कंपनी के पास ऑलरेडी है, कंपनी अच्छी है, उनके पास उसकी खुद की टीम भी रहती है। एंड वी आर ऑल्सो द टीम, ओके, फ्रॉम आवर कंपनी।
और तब क्या होता है ना, फोकस कहाँ पर है, तो वो नॉर्मली शिफ्ट हो चुके हैं अभी डेटा आईक्यू वगैरह, जैसे लो कोड नो कोड स्कूल है ना, उस पर शिफ्ट हो चुके हैं, तो हो रहा है अभी। तो वहाँ पे हो गया मतलब अपने अपने को करना ही पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल जो प्रोजेक्ट्स आते हैं अपने पास वो यूएस यूके रहते हैं। यूएस और यूके के मैक्सिमम प्रोजेक्ट रहते हैं, अबू धाबी इधर साइड के जो यूएई के प्रोजेक्ट रहते हैं वो कम रहते हैं। जो इंडिया के वो हमारे और यूएस और ठीक है, तो बताते वक्त एक साल ये डेटा आईक्यू का, अरे किसका एक साथ, जनरली फॉर नहीं आपको दिख रहा है छोटा सा, मैं प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करूंगा ना, आपका जो रहेगा ना आपका सेशन प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आपको समझेगा कि उसके अंदर की एक साल कैसे लगा इस प्रोजेक्ट को। आप सोचते होंगे कि हम तो एमएल का प्रोजेक्ट एक दिन में कर लेते हैं, राइट, 2 दिन कर लेते, हमको टाइम लगा, फिर 6 महीने लगा, एक साल लगा, ठीक है। वो जो आप बताते हो वो डायरेक्टली ईडीएस से बता देता, उसके पहले तो चले जाता हूँ समझ में नहीं आ रहा है तो 1 महीना एटलीस्ट लग जाता है, एटलीस्ट आई एम लगता है। अगर आपको समझे ही नहीं कि हर फीचर में क्या हो रहा है और फीचर का मतलब एक्चुअल इम्पैक्ट क्या हो सकता है बिजनेस पर, ठीक है, यहाँ रहता तो बिजनेस एंड किल द कंपनी को ऑलवेज क्वेश्चन पूछते थे, अदरवाइज दे गिव सम क्या करेंगे, कुछ नहीं होता, चेक दैट यू आर हैविंग कुछ सप्लाई चेन के बारे में आपको राइट। तो पर्टिकुलरली क्या रहता है, अगर आपका प्रीवियस प्रोजेक्ट अगर बैंकिंग में है तो बैंकिंग वाली कंपनी आपको प्रीफर करती है, ठीक है, जो बैंकिंग में काम कर रही है, इनका सप्लाई चेन में वो सप्लाई चेन वाले प्रीफर करते हैं, क्योंकि क्या है ना, बिजनेस नॉलेज ऑलरेडी रहता है पर्सन को, राइट, तो प्रोजेक्ट में थोड़ा डिले कम होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचते होंगे एक साल तक कैसे खींचा इस प्रोजेक्ट को, अरे खींच जाता है, एक साल से ज्यादा खींच जाता है, टाइम लाइन इतनी बढ़ जाती है, जैसे ऑलरेडी जो स्क्रम रहता है ना, उस स्क्रम का तो पूरा मतलब जो स्प्रिंट रहता है, स्प्रिंट में लैग आते रहता है कंटिन्यू, स्प्रिंट 1 हुआ, स्प्रिंट 1 में ये काम कंप्लीट नहीं हुआ तो स्प्रिंट 1 में चला गया, स्प्रिंट 2 में चला गया, तो स्प्रिंट वाइज जब काम होता है तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है काम, ठीक है। और एक यूज केस नहीं रहते ना, मल्टीपल यूज केस रहती है, सिंगल यूज केस पे काम नहीं रहता कि एक ही आपको यूज केस बोल दिया और खत्म हो गया आपका प्रोजेक्ट, 3-4 यूज केस रहती है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है, तो हो जाता है, ठीक है। इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट भेजता हूँ मैं संतोष आप सबको, ठीक है, ग्रुप पे भेज दूंगा, जैसे आज भेजे। मैंने ये सोचा है इस पे ही भेज जाऊंगा, ठीक है, मीडिया फाइल करके है एक, यहाँ पर अपलोड किया कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, मैं यहाँ से लिंक शेयर कर दूंगा आपको, फाइन, दैट इज ओके। यस सर, सर थोड़ा टाइम सीरीज का भी टाइम सीरीज का एक सेशन लेता डेटा है, ठीक है, देखो वी आर हैविंग वेरी लेस टाइम, ओके, और इसमें देखते हैं टाइम सीरीज का मैं एक सेशन लूंगा, ठीक है, मुझे टाइम सीरीज में जितना आता है मैं उतना आपको बताऊंगा, ठीक है, उसके अंदर बाकी एफ बी प्रॉफिट वगैरह बाकी जितने भी एल्गोरिथम पे नहीं, जितना मैक्सिमम फोकस रहना चाहिए अपना, जैसे अरिमा, ऑटो अरिमा, सरीमा एक्स, ये मुझे पता है, ठीक है, इस पर मैंने काम भी किया पूरा, दैट्स व्हाई आई विल टेल यू दिस एल्गोरिथम्स, और उसका डेटा प्रिपेयर कैसे करते हैं, हम यहाँ पर ही खुद का डेटा प्रिपेयर कर लेंगे तब, ठीक है। टाइम सीरीज लास्ट में लेंगे लेकिन, ठीक है, जब टाइम मिलेगा लास्ट में तो वी टेक द टाइम सीरीज, आई हैव वर्कड ऑन टाइम सीरीज सो आई कैन टेक इट, ओके। और बाकी डॉकर वगैरह जो आप बोल रहे थे कुछ कंसेप्ट वगैरह, तो उसमें मैंने वर्क नहीं किया, तो उसके लिए दूसरे फैकल्टी अगर उनका होगा वर्क किया होगा तो दे कैन टेक, ऑलरेडी हाफ टाइम वाज ऑलरेडी गॉन, ओके। देखो अभी एक्सेल स्टार्ट करके कुछ मतलब नहीं लग रहा, क्योंकि एक्सेल को पूरा एक सेशन लगेगा, तो व्हाट वी विल डू, आई विल टेक दी कंपनी, जो एक सेशन था जो मैं बीच में लेने वाला था, तो दैट इज बेस्ड ऑन दी कंपनी वर्क कल्चर कैसा रहता है, उसके अंदर कंपनी स्लैंग क्या रहती है, जो आपको थैंक्स क्यों रहती है, कॉर्पोरेट स्लैंग, दैट इन इंटरव्यू अगर आपको बोल दिया जाए कि व्हाट वाज योर हाउ वाज योर डब्ल्यूबीआर, हाउ यू प्रेजेंट इन डब्ल्यूबीआर, एंड टू एंड लेना था ना, व्हाट संतोष, व्हाट मतलब अभी डेटा का पूरा पाइपलाइन लेना था, डेटा का पूरा पाइपलाइन लेंगे तो फिर अपने को टाइम कितना लगेगा उतना नहीं है ना अपने पास, तो दैट्स व्हाई आई हैव लाइक टेकन दी, आई मीन आपको मैंने उसके डेटा के पे क्या कर लिया, एक फैमिलियर कर दिया, ठीक है, अब आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, राइट। सेशन इज रिवीजन सेशन, देखो रिवीजन सेशन ही रिवीजन सेशन है आपका, ये जो एक्स्ट्रा मैं ले रहा हूँ ना डेटा आईक्यू, पावर बीआई, एक्सेल एंड दिस इज नॉट लाइक हैव टू लाइक कवर, राइट, बट दिस इज फॉर यू ओनली, दैट यू कैन लाइक
familiar with the particular tools and like और भी लिया तो हम डैशबोर्ड बना के देंगे। तो नेक्स्ट टास्क क्या है आपका, आपको तो दिस थिंग कैन बी डन एंड ले तो अपने तो होगा, ठीक है। काइंड ऑफ रिवीजन बैक, नॉट काइंड ऑफ रिवीजन बैक, फाइन। सो नाउ व्हाट विल डू, विल स्टार्ट विद लाइक जो एक सेशन लेने वाले थे बीच में जो कि अपना कंपनी कल्चर एंड वर्कफ्लो पे था, ओके। तो उसको एक देख लेते हैं। सम आर लेट्स से सम कॉर्पोरेट slangs, okay, some corporate slangs are there. WBR, do you know what is WBR? आपने सुना है WBR क्या रहता है? WBR is nothing but the weekly business review. ठीक है, अब WBR कब टर्म यूज होता है? एवरी स्प्रिंट, आफ्टर एवरी 1 स्प्रिंट और 2 स्प्रिंट। स्प्रिंट क्या रहता है? स्प्रिंट मतलब एक प्लान रहता है रेडी अपना 15 डेज का, 21 डेज का। स्प्रिंट कैन बी डिवाइडेड इन 7 डेज और 15 डेज और 21 डेज और होल मंथ, ओके। इसमें ऐसा स्प्रिंट डिवाइड रहता है। तो बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट, तो नॉर्मली स्प्रिंट कंसिडर करेंगे तो स्प्रिंट इज ऑफ 15 डेज, नॉर्मल स्प्रिंट। आई एम नॉट लाइक कंफर्मिंग दिस, ओके। तो उस केस में क्या होता है ना, हर स्प्रिंट के बाद अपना एक क्लाइंट के साथ एक कॉल होता है। स्प्रिंट में क्या रहता है, इन स्प्रिंट, इन एवरी स्प्रिंट डेज या फिर 21 डेज, इस टाइप के आपके स्प्रिंट रहते हैं। तो आफ्टर एवरी स्प्रिंट यू हैव टू, जो भी आपका काम हो चुका है, जो भी अगर आपका फर्स्ट यूज केस था उसके ऊपर अगर आपने थोड़ा काम किया है, ठीक है, उसका अगर डेटा का प्रिपरेशन हो चुका है आपका, तो यू हैव टू शो दिस टू द क्लाइंट एवरी बाय वीकली या फिर एक वीक के बाद आपको एक शो करना पड़ता है, ठीक है। तो आपका रहता है वीकली बिजनेस रिव्यू, उसको बोलते हैं अपन, वो मीटिंग को बोलते हैं WBR, ठीक है। तो WBR अगर किसी ने टर्म यूज कर लिया तो आपको आना पता चाहिए, ओके। नॉर्मली ये ऐसी टर्म यूज होती है, आपको POC वगैरह यूज होगा, ठीक है। POC पता है आपको, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, राइट? जो आप पायलट प्रोजेक्ट करते हो उसी को अपन पायलट प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, राइट। एक और POC का मीनिंग है, वो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कब यूज होता है? तब आपके पास एक साइड है, कंपनी की साइड, एंड देन अदर साइड है, ठीक है। अदर साइड में क्या है, अदर साइड का जो पर्सन है जिससे आप कांटेक्ट करने वाले हो, एवरी टाइम यू यूज्ड टू कांटेक्ट डेली और लाइक वीकली, so that particular person we call as the point of contact, fine. After that let's say MOM बोलते हैं हम, MOM लिखते हैं, ठीक है। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग, वट एवर वी हैव लाइक जो भी मीटिंग में हो चुका है तो उसको शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं स्लैंग कि MOM भेज दो, ठीक है। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग। आफ्टर दैट नॉर्मली कॉल ऐसा बोलते हैं, मीटिंग को मीटिंग ना बोलते हुए नॉर्मली कॉल बोलते हैं कि आज अपना कॉल है, ठीक है, आज जो भी अपने कॉल पे ये हुआ, ठीक है। तो कॉल प्रिफरेबल रहता है ऑलवेज इंस्टेड ऑफ सेइंग द मीटिंग, राइट। मीटिंग कब बोलते हैं, जैसे नॉर्मल लेक्चर अगर जब रहते हैं उनके कुछ मीटिंग्स या फिर कुछ ऑफिशियल मीटिंग्स, तो हम उसको मीटिंग ऐसा कंसिडर करते हैं। इंडस्ट्री में उसको नॉर्मली कॉल ही बोलते हैं, ठीक है। देन आफ्टर दैट लूप, लूप एक टर्म बहुत बार यूज होता है। लूप मतलब क्या रहता है, putting your manager or someone else in the CC of your email, okay. CC में हमेशा अपने को मैनेजर को रखना पड़ता है, so that we call as the loop, okay. Then deliverable, ये क्या रहता है, जो भी आउटपुट आपको डिलीवर करने हैं क्लाइंट को, so we call it as the deliverables, right. ये सुना होगा, ये क्या है, एंड ऑफ डे, एंड ऑफ डे, ठीक है, ये आपको पता है। ये क्या है, FI, ये सुना होगा आपने, For your information. ये हमेशा मेल में रहते हैं, ठीक है। कंप्लीट दिस बाय एंड ऑफ डे, लाइक फॉर योर इंफॉर्मेशन, KT फॉर नॉलेज ट्रांसफर, ये सारी चीजें मेल में रहती है, ठीक है। और ये क्या होता है, कभी कभी ये पूछ लेते हैं अपने को इसके अंदर स्प्रिंट क्या है, WBR क्या है, आपको इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि आपका स्प्रिंट कैसा था, तो तब आप सोचते हो स्प्रिंट क्या था, ठीक है। स्प्रिंट क्या बताए, स्प्रिंट बताना 15 डेज का स्प्रिंट था हमारा, 21 डेज का स्प्रिंट था। तो स्प्रिंट के बाद WBR होता था कॉल, राइट। तो उसके अंदर फिर जो भी आपका जो भी वीकली प्रोग्रेस है, बाय वीकली प्रोग्रेस है, that you have to show to the client, right, and you have to take the feedback from the client। अगर वो स्प्रिंट में कुछ एरर या फिर लॉग लग रहा कि आपका नहीं हुआ या फिर हुआ लेकिन गलत है, ठीक है,
एक्सपेक्टेशन क्लाइंट की डिफरेंट थी एंड यू हैव गिवन समथिंग डिफरेंट. उन्होंने टाइगर बोला, आपने कुछ डिफरेंट ही दे दिया, राइट? तो इस टाइप से काम होता है कि नॉर्मली उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई रहती है कि उतना मीट भी नहीं कर सकते, तो थोड़ा उनकी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा कम ज्यादा करके काम करना पड़ता है. तो अगर मैच में एक्सपेक्टेशन वो स्प्रिंट के अंदर, तो वो काम जाता है नेक्स्ट स्प्रिंट में. नेक्स्ट स्प्रिंट में काम गया, फिर से लाएगा प्रोजेक्ट के अंदर. तो इस टाइप से जो आप बोल रहे हैं ना, 1 साल कैसे लगता है, 6 महीने 8 महीने कैसे लगते हैं प्रोजेक्ट को, तो ऐसे लगते हैं प्रोजेक्ट 6 महीने 1 साल. ठीक है, तो दिस आर दी बेसिक स्लैंग्स, कॉर्पोरेट स्लैंग्स जो हम यूज करते हैं. ओके, पेपर डाला ऐसे नॉर्मल बोलते हैं, फूड पेपर डाल दिया हमने, तो नोटिस पीरियड पे वगैरह है इस टाइप से. ठीक है, तो बेसिक स्लैंग्स आपको बताइए. आफ्टर दैट वी सी दी स्टेक होल्डर्स. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछते ही है इंटरव्यू में. हु आर योर स्टेक होल्डर्स फॉर द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट? ठीक है, तो स्टेक होल्डर्स क्या रहते हैं? हु आर द स्टेक होल्डर, कैन यू एक्सप्लेन? बिजनेस एनालिस्ट वगैरह, डेटाबेस डेवलपर्स. नहीं, वो नहीं रहते. नहीं, Clients. हाँ, टीम मेंबर. कंपनी कंपनी के स्टॉक होते हैं. Company share. स्टेक होल्डर्स. ओके, वो आप शेयर किस में चले गए, ठीक है, वो एक होता है. ठीक है, देन आफ्टर दैट आपने टीम्स का बोला, वो वैसा नहीं होता है. ठीक है, मेंबर्स नहीं, टीम मेंबर्स नहीं, अपने टीम मेंबर्स नहीं बोलते स्टेक होल्डर्स. देखो, स्टेक होल्डर्स बोला आपको कि आपके प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स कौन थे वहां पर. तो स्टेक होल्डर मतलब क्या रहता है ना, जिन्होंने आपको प्रोजेक्ट दिया है. ठीक है, कंपनी ने प्रोजेक्ट दिया है आपको. ठीक है, तो कंपनी के जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज है, जिन्होंने पर्टिकुलर एक विंग के लिए प्रोजेक्ट बनाया है. ठीक है, ABC वर्टिकल उनके पास है, तो C वर्टिकल के लोगों ने आपको प्रोजेक्ट दिया है. ठीक है, कंपनी बड़ी है. ठीक है, कंपनी में n नंबर ऑफ उनके यूनिट्स होंगे, लेकिन उसके एक यूनिट्स ने आपको प्रोजेक्ट दिया है. तो वो यूनिट के जो स्टेक होल्डर्स रहेंगे, ओके, जो वर्किंग वहां पे कर रहे हैं, जिनके अंडर आपका प्रोजेक्ट शुरू है, जो आपको पे करने वाले हैं. ठीक है, दे आर यूर स्टेक होल्डर्स. ओके, तो एटलीस्ट 3 to 4 नेम्स ऐसे याद करके रखो स्टेक होल्डर्स के, US UK के, या फिर जो भी आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं ना, तो वहां का क्या करो, एक बार वो वेबसाइट पे जाओ. वेबसाइट पे जाके वहां पर देखो कि उनकी वहां पे कौन से लोग काम करते हैं, उनके नाम याद करके रखो. ठीक है, तो 3 to 4 नेम्स एटलीस्ट यू हैव टू लाइक लर्न. वो रहते हैं आपके स्टेक होल्डर्स. फाइन. देन एक और रहता है SOW. SOW इज नथिंग बट दी स्टेटमेंट ऑफ वर्क. SOW इज नथिंग बट दी स्टेटमेंट ऑफ वर्क. देखो, ऐसी टर्म्स अगर आपने इंटरव्यू में यूज किया ना, तो थोड़ा और इम्पैक्ट आपका भी अच्छा होता है, उनको भी समझ आता है. नॉर्मली उनको पता होता है कि कौन सा पर्टिकुलर पर्सन अगर आंसर देता है ना, उन्होंने किसी ने पूछ लिया, तो कोई भी बोल देता है मुझे मेरी किस स्किल ये है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये लीनियर रिग्रेशन. तो ये मतलब लीस्ट, मैंने सुना है लीस्टिंग ऐसी की स्किल बोल देते हैं. ठीक है, तो दे आर नॉट योर की स्किल्स. These are the topics that you have learned under the Python. That are not like you are like mentioning dictionary as your key skill. No, this is completely wrong. तो ऐसा नहीं करना है. ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, आपका इंटरव्यू पहले फेज में खत्म हो गया. मतलब वो उनको समझ जाता है. इंटरव्यू भी चला भी आपका आधा घंटा, तो भी वो फर्स्ट था आपका कि आपने बोल दिया, ऐसे आंसर दे दिए कि जो रिलीवेंट ही नहीं थे एज अ इंडस्ट्री पर्सन. एक्सपेक्ट ही नहीं थे कि आप ऐसे आंसर दोगे, राइट? तो ऐसा अगर आंसर आ गया, तो वहां पे आपका इंटरव्यू एंड हो गया. फाइन. So SOW is nothing but statement of work. Statement of work. ठीक है. सर, Yes, कोई पूछ रहा था कुछ? क्रॉस फंक्शनलिटी मींस उसको बोल सकते हैं ना अपन, अपने रिलेटेड जो रहेगा, समझो बिजनेस एनालिस्ट हो. आप फिर से क्वेश्चन बताइए, आपसे समझ नहीं आया. क्रॉस फंक्शनल टीम जब बोलते हैं, हाँ तो हाँ हाँ, बोले क्रॉस हाँ. फंक्शनल टीम. हाँ हाँ, वैसा बोल सकते हैं कि दूसरी टीम उधर थी, डेटा साइंस टीम, और इधर अपनी टीम थी, एंड वी आर लाइक वर्किंग टुगेदर. तो तब वो शेयर होता है उनके साथ में अपना, मतलब कभी कभी हमको कोड भी शेयर करना पड़ता है, बट विद द परमिशन ऑफ द मैनेजर. Because sharing resources of one company to another is not like it's restricted. You cannot share, but उस केस में अपन शेयर भी कर सकते हैं अगर ऐसा डील रहा तो अपने ऑलरेडी. डिपेंड करेंगे, उसको क्रॉस फंक्शनल टीम भी बोल सकते हैं अपन. ठीक है, करेक्ट. ओके, तो हम क्या थे, स्टेटमेंट ऑफ वर्क. ओके, अब देखो स्टेटमेंट ऑफ वर्क क्या रहता है ना, जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है. ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट एवरीथिंग इज डिसाइडेड कि प्रोजेक्ट पे कितने लोग काम करने वाले हैं. ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स विल गोइंग टू वर्क इन दिस प्रोजेक्ट. फाइन. सेकंड थिंग इज ये प्रोजेक्ट कितना, इसका टाइमलाइन क्या होने वाला है, टेंटेटिव टाइमलाइन, नॉट द फिक्स. बट वो ऑलरेडी क्या रहता है ना, मैनेजर जो रहता है ना, वो ऑलरेडी उसको पता रहता है कि मैं अगर 4 महीने बोल दूंगा और प्रोजेक्ट को 6 महीने लग गए, तो प्रॉब्लम अपने को ही होगा कि पैसे, फिर उसके अंदर पैसे का थोड़ा ही रहता है.
उनको इंटरेस्ट लगता है उसके ऊपर, ठीक है। जितना डिले होगा कंपनी को प्रोजेक्ट देने के लिए उतना उनका कॉस्टिंग कम होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ऑलरेडी इतना ज्यादा बोल देते हैं, मतलब 4 महीने का प्रोजेक्ट रहा तो 6 महीने 7 महीने बोल देता है कि एटलीस्ट इतना टाइम लगने वाला है। एंड वो निगोशिएट भी नहीं करता उसके अंदर कि इतना टाइम लगने वाला है, क्योंकि उसको पता है यहाँ पे अगर आपने कम टाइम बोल दिया तो अपने पास रिसोर्सेज भी उतने चाहिए। मतलब उसके पास रिसोर्सेज 4 ही लोग हैं और वो प्रोजेक्ट 4 मंथ में कंप्लीट करना है, तो वो 6 मंथ में कंप्लीट करना है। एंड इट इज लाइक हो सकता है बट एकदम टाइट डेडलाइन के साथ, लेकिन टाइट डेडलाइन फॉलो नहीं होती है इंडस्ट्री में, होती नहीं, कभी भी नहीं होती, क्योंकि आप अपनी तरफ से अच्छा काम करेंगे, ठीक है, नो इशू। आप रोज कंपनी में जा रहे हो, रोज अच्छा काम 9 आवर का आप काम कर रहे हो, बट वो जो नेक्स्ट पर्सन है उसने आपको डेटा ही नहीं दिया टाइम पर, ऐसे जो आपके क्वेश्चन थे वही उसने आंसर नहीं किए। आपको डेटा समझना था, उसके अंदर उसने आंसर ही नहीं किया कि एक हफ्ते बाद आंसर कर रहा क्वेश्चन का, वीकली बिजनेस रिव्यू में आपको वो आंसर दे रहा है, ठीक है। तब तक तो आपका काम पेंडिंग हुआ ना वो। तो इस टाइप से क्या है, काम पेंडिंग होता है, तो क्या रहता है स्टेटमेंट ऑफ वर्क में जो आपकी डेडलाइन रहती है वो एक्सटेंडेड ऑलरेडी रहती है, ज्यादा बड़ा चढ़ा के लिखते हैं, राइट। तो स्टेटमेंट ऑफ वर्क कंसिस्टेंसी प्रोजेक्ट क्या क्या कौन सा अपना प्रोजेक्ट होने वाला है, उसके पॉसिबल यूज केसेस जो आप उनको देने वाले हो, ठीक है। यूज केसेस क्या रहते हैं, व्हाट आर द यूज केसेस, व्हाट आर द यूज केसेस, यूज केसेस इज नथिंग बट दी जो भी आपका ऑब्जेक्टिव रहेंगे ना प्रोजेक्ट के, ऑब्जेक्टिव जो आपको फुलफिल करने हैं, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है कि उनको चाहिए, सपोज एक चाहिए उनको, उनको डिमांड फोरकास्ट करनी है, ठीक है। उनका फर्स्ट है उनके प्रोडक्ट की डिमांड फोरकास्ट करनी है। सेकेंड उनको चाहिए कि उनका लेट से कुछ वॉल्यूम रेवेन्यू कैसे इंप्रूव होगा, ठीक है, रेवेन्यू कैसे इंप्रूव होगा, ये उनकी सेकंड यूज केस है। तो ऐसी उनकी एन यूज केसेस रहती है, ठीक है। नॉर्मली 3-4 यूज केसेस रहती है उनकी। अगर आपको प्रोजेक्ट मिला है तो एक ही यूज केस के ऊपर नहीं रहता है। अगर नॉर्मली आपके अगर क्लाइंट सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री थोड़ी डिफरेंट रहती है। प्रोडक्ट बेस्ड में थोड़ा अच्छा काम होता है, मतलब एक टूल पे ही काम करते हैं, थोड़ा वर्किंग का प्रेशर भी थोड़ा लो रहता है। तो सर्विस बेस्ड में अगर काम कर रहे हो तो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो नेक्स्ट कंपनी को, क्लियर। तो उस केस में यूज केस भी ऑलरेडी यहाँ पे एसओडब्ल्यू में डिफाइन ही रहती है। देन आफ्टर दैट यहाँ पर क्या रहता है एसओडब्ल्यू में, स्टेटमेंट ऑफ वर्क में रहता है आपका कॉस्टिंग, ठीक है। ये आपको पता चलता है, जैसे मैनेजर आपको एसओडब्ल्यू शेयर कर देगा एट द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही आपको एसओडब्ल्यू आ जाएगा कि हमने ये है ऐसा किया है, ठीक है, एंड दिस आर दी थिंग्स दैट वी हैव टू डू, ओके। तो जो आपका एक लेवल पे आ जाते हो आप, मैनेजर एंड ऑल दी टीम मेंबर, उनका नॉलेज जो रहता है प्रोजेक्ट के बारे में, उनको पता है कि अपने को करना ही है ये, ठीक है। और इतना रेवेन्यू इससे जनरेट हो रहा है अपनी कंपनी के लिए, लेट्स से लाइक 200K 300K डॉलर इस टाइप से रहता है नॉर्मली। 800K डॉलर इस टाइप से जब रहता है तब एलटीपी रहता है, ठीक है। नॉर्मल अगर एक दो यूज केस करनी है तो डिपेंड ऑन यूज केसेस, कंपनी का भी एक रिक्वायरमेंट ये रहता है प्राइसिंग का, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्या हम देने वाले हैं, उस हिसाब से वो प्राइसिंग करते हैं, ठीक है। और प्राइसिंग हाई रहती है, जैसे यूएस यूके के लिए बहुत ज्यादा हाई प्राइसिंग है। उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए तो ये थोड़ा लो प्राइस है इंडिया का, दैट्स वाई अपने को इधर ज्यादा आईटी का फोकस है, यहाँ पे लोग भी ज्यादा अपने आईटी में, एंड थोड़ा कम इसमें भी हम काम कर सकते हैं। एटलीस्ट वो हमारे लिए ज्यादा है बट उनके लिए तो वो कम है देने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एवरेज सैलरी 50-60 LPA रहता है, ठीक है। यहाँ पे एवरेज सैलरी 15 to 20 डेटा साइंटिस्ट को नॉर्मली इतना रहता है। एवरेज सैलरी 12 तक रहता है, 12 to 15 में। एवरेज सैलरी ऑफ 3 years एक्सपीरियंस, 3 or 4 years का। उसके बाद में फिर वो बैंड्स आते हैं, बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3। फिर अगर आप 3 साल के बाद 4-5 साल हो गया आपको, 1-2 साल और आपने निकाल लिए, फिर आपका थोड़ा 20 के ऊपर जाता है, थोड़ा 20 के करीब करीब बैंड में जाता है। फिर अगर आप स्विच कर रहे हो उस बीच में तो एकदम फिर तो बढ़िया काम हो जाता है। Okay, fine. So these are the things which are included in the SOW. Okay, fine. So I hope that SOW like completely okay to you. Fine. After that, अब देखो POC and LTP वो टर्म्स यूज होती है। इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि आपका LTP था, POC था, ठीक है। तो LTP बोला तो आपको ये सुना ही नहीं रहता कभी पहले, ठीक है। POC तो भी आपने बहुत बार सुना है, ठीक है। LTP इज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, ठीक है। तो 1 साल या फिर उससे ज्यादा चलता है, उसको हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं। और 8 महीने वगैरह भी चलता है, ठीक है। LTP वगैरह ऐसा कुछ नहीं। POC मतलब जो आपका शॉर्ट प्रोजेक्ट है। POC भी आपकी 2 टाइप की POC रहती है। फर्स्ट POC पेड वाली रहती है, जिसमें आपको क्लाइंट पे करता है, ठीक है, POC के लिए भी। मतलब वो POC में भी क्या करता है, अगर उसके पास 10 यूज केसेस है सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम, तो वो एक यूज केस आपको देता है कि हमको ये यूज केस सॉल्व करके दो, और आपको उसके लिए पेमेंट भी देते हैं, पे भी करते हैं कंपनी को। तो वो होती है फर्स्ट POC। सेकंड POC कैसी होती है, जिसके अंदर कोई पेमेंट नहीं होता, फ्री में काम करना पड़ता है। तो उस केस के अंदर क्या होता है,
मल्टीपल वेंडर्स जो होते हैं, वेंडर्स मतलब जो मल्टीपल अपने कंपनी जैसी कोई दूसरी कंपनी भी है वो भी उसके लिए अप्लाई करते हैं और एक साथ में सब काम चालू कर देते हैं। फिर वहां पे रहता है कंपटीशन, जिसने काम पहले किया और अच्छा किया, पहले करना इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा काम किया और क्लाइंट इज सेटिस्फाइड तो उनको मिलता है प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी जो शुरू है ना, मैक्सिमम मार्केट में प्रोजेक्ट कम है तो लोग क्या करते हैं, कहीं से भी पीओसी उठा के लेके आते हैं, फिर वो पेड रही नहीं रही तो फिर अपने को उसके ऊपर 1-2 महीने इतना बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। एक बार वो पायलट प्रोजेक्ट अपना सक्सेसफुल हो गया देन लाइक थोड़ा आराम से काम कर सकते हैं एलटीपी वगैरह में। बट पीओसी इज लाइक वेरी टफ। टफ मतलब कम समय में डेटा एनकोड करना इज वेरी डिफिकल्ट। यस, क्वेश्चन था। हाँ संतोष, बीड होता है, बीड लगता है वहाँ पर। राइट, करेक्ट। सर अपन बोल सकते हैं क्या पीओसी प्रोजेक्ट बेस पे हमने काम किया था इंडस्ट्री? नहीं ऐसा नहीं बोलता, सिर्फ पीओसी पे काम थोड़ी ना करते ना। पीओसी क्या है, POC अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है और 3 साल में आपने पीओसी किया है तो नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आपने एटलीस्ट एक 3 साल अगर बोल रहे हैं तो एटलीस्ट 5-6 प्रोजेक्ट पे काम हो ही जाता है नॉर्मली। 5 एटलीस्ट, मतलब अगर कम भी देखेंगे 8-8 महीने का भी देखेंगे आप प्रोजेक्ट, 8 मंथ का, और बीच में अगर आपको गैप भी मिला तो भी 4 प्रोजेक्ट पे आपने काम कर लिया है एटलीस्ट मिनिमम। तो पीओसी कैसे बोलेंगे, एक पीओसी किया फिर पीओसी के बाद हमको क्या मिला, उसका प्रोजेक्ट मिला, हमने पीओसी में इतना अच्छा काम किया कि हमको उसका उसी कंपनी ने हमको प्रोजेक्ट किया। राइट, और अभी हमारे जो न्यू जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो उसी कंपनी के जो डिफरेंट डिफरेंट विंग्स है वो भी हमको ही प्रोजेक्ट दे रहे हैं। तो इस टाइप से भी बोल सकते हो। ठीक है, ऐसा होता है नॉर्मली, ठीक है ऐसा है। तो दिस इज अबाउट पीओसी एंड एलटीपी। ठीक है, पीओसी का जो नॉर्मल टाइम लाइन आप बोल सकते हो 2 to 3 मंथ्स आप बोल सकते हो। 15 डेज वगैरह ऐसा कुछ बच्चे बोल रहे थे 15 डेज वगैरह, हमने बताया था 15 डेज में डेटा नहीं समझता। ठीक है, पीओसी नहीं होती है, अगर होती भी होंगी तो एटलीस्ट कैसे भी करके अगर देना रहा, उनका टाइमलाइन ऐसा पीओसी का कि हमको 7 डेज 15 डेज में कंप्लीट करके दो, तो वो कुछ से भी करके या फिर रिसोर्सेज बढ़ा के दे देते हैं। अगर कंपनी को कुछ खर्चा नहीं करना वो पीओसी पर, मतलब रिसोर्सेज अलोकेट नहीं करने, रिसोर्सेज अलोकेट करने मतलब कंपनी पैसा अलॉट कर रही है, आपको पेमेंट दे रही है कंपनी, और आपका टाइम अगर ऐसी जगह पे जा रहा है उनको पैसा नहीं मिल रहा तो दैट इज दी वेस्ट ऑफ मनी फॉर देम। ठीक है, तो वो अवॉइड करते हैं इस टाइप का पीओसी। लेकिन अभी का मार्केट सिचुएशन जैसा है तो उस हिसाब से अभी पीओसी भी चल रहा है, मतलब नॉन पेड भी चलते हैं, चलता है, जैसे खाली बैठने से अच्छा तो ठीक है ऐसे भी कर, जो बेंच वाले एम्प्लॉय है फिर उनको लगा देते काम पे। ठीक है, तो आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत बार पूछते हैं, टीम इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपको टीम इंफॉर्मेशन, आपको टीम साइज पूछे पूछे किसी को कि व्हाट वाज योर टीम साइज, लाइक हाउ वाज योर डेजिग्नेशन, पूछा है किसी को? यस Yes, सर। sir. हाँ, ये नॉर्मली पूछते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो रहता है और आप बोल देते हो कि हम 8-10 लोग थे और पीओसी पे काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। पीओसी मैंने पहले बताया, पीओसी क्या रहता है, कंपनी के लिए वो एसेट नहीं है, वो लिएबिलिटी है। ठीक है, एसेट और लिएबिलिटी में डिफरेंस है, एसेट में पैसा बनता है, लिएबिलिटी में पैसा कम होता है। ठीक है, अगर आपको कंपनी किसी पीओसी में डाल रही है यानी काम करने के लिए, तो वहां पर क्या है, कंपनी लॉस में है, तो कंपनी कितना लॉस कर सकती है, मैक्सिमम 2 मंथ 3 मंथ, दैट इज बियरेबल, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो टीम इंफॉर्मेशन बताते वक्त भी दो वेब से डिवाइड होती है टीम इंफॉर्मेशन। अगर आपने लास्ट प्रोजेक्ट अगर आपने पीओसी बताया उनको और उनको उन्होंने पूछा कि आपकी क्या थी टीम इंफॉर्मेशन, वहाँ पे कितने लोग थे, तो वहाँ पे टीम में कितने लोग रहते हैं, 2 या 3 मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं रहते। पीओसी रहा तो बोल दो, अगर पेड वाली रही तो ज्यादा रह सकते हैं, नॉन पेड रही तो क्या रहता है 2 या 3 लोग ही रहते हैं। कभी कभी तो एक ही बंदे को क्या करना पड़ता है, पूरी पीओसी करनी पड़ती है। लाइक हमने भी किया है, एक सिंगल हैंडल भी पीओसी हैंडल किया है। ठीक है, तो उस केस में कंपनी रिसोर्सेस अलॉट ही नहीं करती है, उनके पास रिसोर्सेस रहते भी नहीं है ज्यादा, रहे तो अगर बेंच वाली कंपनी है जिसमें बेंच पे बैठे रिसोर्सेस, तो वो भी सोचती है कि उसका पर्टिकुलर स्किल सेट है क्या वो पीओसी के लिए, स्किल सेट ही नहीं है उसको लगा दिया तो 2 महीने के 6 महीने लगा देगा। ठीक है, तो स्किल सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका भी स्किल सेट अच्छा होगा, कंपनी के पास आपका स्किल सेट रहता है मैनेजर के पास, तो वो देखता है कि इसको कौन से प्रोजेक्ट में डालना है। ठीक है, मुझे नॉर्मली स्टार्टिंग से एमएल में डाला था तो मुझको अभी भी एमएल टाइम सीरीज ऐसे प्रोजेक्ट मिलते हैं, डीप लर्निंग पे काम करने का मौका नहीं मिला। ठीक है, तो इस टाइप से स्किल सेट, अब मैंने अभी स्किल सेट भी बढ़ाया, मैंने खुद का वहाँ पे अपडेट भी किया, लेकिन मेरे को प्रैक्टिकल मैनेजर की नजर में नॉलेज है वो नहीं है। राइट, so he will not add me to that project in case like इमरजेंसी है, अगर कोई है नहीं अवेलेबल रिसोर्सेज तो वो नई टीम ऐड कर लेते हैं, अदरवाइज दे ओवर। तो टीम इन्फॉर्मेशन क्या रहता है, पीओसी रहा तो 2 से 3 लोग हैं। ठीक है, अगर इफ इट इज पीओसी और पीओसी रहा तो अगर आप पीओसी बता रहे हो तो 2 to 3 रहेंगे। ठीक है, एलटीपी बता रहे हो तो यहाँ पे तो बड़ी टीम रहती है। ठीक है,
1 साल का एलटीपी है तो यू कैन से 5 to 6 या फिर आप बोल सकते हो 6 to 7, इस टाइप के लोग रहते हैं एलटीपी में आपकी टीम में। कि देखो इसमें क्या रहता है ना, इसमें भी अगर आप डिवीजन करेंगे कि आपको पूछा कि इसके अंदर आपका टीम लीड कैसा कौन था वो रहता, तो इसके अंदर डिजिग्नेशन रहते हैं। फर्स्ट यूर लाइक मेन रोल इज ऑफ द मैनेजर। अब मैनेजर क्या करता है, सिर्फ वो बताने का काम करता है, वो कुछ हैंड्स ऑन उसके ऊपर काम नहीं करता प्रोजेक्ट पे। सिर्फ आपको क्या करेंगे, ओरली बताएंगे कि मुझे आज ये करके चाहिए एंड कुछ भी करो वो करना ही पड़ता है, ठीक है। और नहीं उस दिन हुआ काम तो नेक्स्ट डे पे क्या बोल सकते हैं आप उनको कि मुझे नहीं आया, आप थोड़ा इसके ऊपर एक्सप्लेन करो, या फिर कोई एक रिसोर्स जिसको ये काम आता होगा उसकी थोड़ी हेल्प चाहिए मुझे। तो ये मैनेजर का काम रहता है कि वो आपको अलॉट कर देगा फिर वो चीजें। कुछ पढ़ना रहा आपको, स्किल्स अपडेट करनी है प्रोजेक्ट रिलेटेड, तो यू कैन आस्क टू मैनेजर। बाकी मैनेजर का कुछ काम नहीं रहता है। मैनेजर का काम रहता है प्रोजेक्ट में जब एक्सप्लेन करेंगे अपन तो प्रोजेक्ट की स्टेप देखेंगे, तो फर्स्ट स्टेप जो रहेंगे ना तो वहाँ पे अपन देखेंगे कि मैनेजर का काम क्या रहता है, ठीक है। सेकंड रहता है आपका टीम लीड। ओके, योर टीम लीड कैन ऑल्सो बी योर मैनेजर। ऐसा भी हो सकता है कि आपका टीम लीड ही आपका मैनेजर है, कंपनी वाइज डिपेंड करेंगे, ठीक है। मेरी कंपनी हमारी कंपनी में कैसा है कि मैनेजर डिफरेंट है एंड माई टीम लीड लाइक हु इज लाइक ड्राइविंग द प्रोजेक्ट इज डिफरेंट। ऐसे नॉर्मली ऐसे ही रहता है कि मैनेजर डिफरेंट रहता है, मैनेजर के अंदर में बहुत सारे लोग रहते हैं, राइट। तो हर जिसमें से ज्यादा एक्सपीरियंस है 10 to 12 ईयर्स वाले एक्सपीरियंस जो लोग रहते हैं उनको नॉर्मली वो टीम लीड या फिर बना देता है। ऐसा टीम लीड मतलब ये पोजीशन नहीं है टीम लीड, ठीक है। पोजीशन डिफरेंट रहते हैं कंपनी में। जैसे आपने लिखा है एसोसिएट एमएल इंजीनियर, राइट, देन एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, ये आपकी पोजीशन रहती है कंपनी के अंदर। फिर वो पोजीशन में फिर आपको देते हैं टीम लीड। टीम लीड मतलब ये कुछ पोजीशन से बताते नहीं है बट कंसिडर करते हैं कि जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लीड कर रहा है दैट इज द टीम लीड फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद रहते हैं, अब देखो ये अगर प्रोजेक्ट एलटीपी है तो एक थोड़ा बैलेंस रहता है। टीम लीड के अंदर क्या रहता है, 2 से 3 लोग ऐसे रहेंगे जिनका एक्सपीरियंस 5 to 6 या फिर 5 to 8 ईयर्स का है, ठीक है। ऐसे लोग रहते हैं। आफ्टर दैट 1 से 2 लोग ऐसे रहेंगे जिनका एक्सपीरियंस है आपका जैसे 2 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस। एंड 1 या 2 रहेंगे आपके फ्रेशर्स, मतलब 0 to 2। अब फ्रेशर को का चांस नहीं मिलता है, ठीक है। तो फ्रेशर रहते हैं नॉर्मली, ये जो ना फ्रेशर होता है, फ्रेशर को चांस मिलता है मशीन लर्निंग या फिर डेटा साइंस में काम करने के लिए। उनको पहले पाइथन डेवलपर इससे स्टार्ट करके थोड़ा दिया है रहता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। वो रॉन्ग करेक्ट है इसके ऊपर आप काफी बोल सकते क्या वहाँ पर पूछा तो एक्सपर्ट अभी नहीं लेना, ठीक है। एक्सपर्ट सर स्टार्टिंग में आप डायरेक्ट जो फिर मींस डायरेक्टली अपन एनालिस्ट में डायरेक्टली डेटा साइंटिस्ट का रोल नहीं, डायरेक्ट नहीं मिलता डेटा साइंटिस्ट का होता है, ठीक है। ये एकदम मैंने फैक्ट है, डायरेक्टली कभी नहीं मिलता है। आप लगते हो कंपनी में एज ए एनालिस्ट लगते हो, उसके सिवा लगना ही नहीं। पहले तो स्टार्टिंग फेज जो रहती है कंपनी की, एनालिस्ट, पाइथन डेवलपर ऐसे ही लगते हैं। आपने डायरेक्टली फर्स्ट दिखा दिया कि डेटा साइंटिस्ट लगा था मैं, तो मतलब एक तो आप मतलब आपके ऊपर डिपेंड करेंगे, बोलना कॉलेज वगैरह भी डिपेंड करता है। फ्रेशर अगर आप हो, आप आईआईटी एनआईटी से पास आउट हो, तुम वहां पर लगते, वहां पर उनको डायरेक्टली टीम लीड की पोजीशन मिल जाती है। लेकिन वो डिपेंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर कोई अगर आईआईटी एनआईटी से नहीं होगा, नॉर्मल कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, नॉर्मल कॉलेजेस से होगा, ठीक है, तो उनको जो इनिशियल स्टार्ट करना पड़ता है वो एनालिसिस स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। ओके सर। तो ऐसे ही बताओ, ठीक है, इस टाइप से बताया तो प्रॉपर लगता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं अपन हर एक कंपनी को एक बुक मेंटेन करना पड़ता है। एवरी कंपनी नीड्स टू मेंटेन वन बुक। बुक के नाम डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं हर डिफरेंट कंपनी में। तो बुक में क्या रहता है ना, प्रोसेस फ्लो रहता है पूरा। जो भी आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है ना, उसका प्रोसेस फ्लो रहता है।
एमएनसी या फिर मिड स्केल कंपनी में ये फॉलो होता है, ठीक है, ये जो स्टेप्स बता रहा हूँ। स्मॉल कैप कंपनी में ये स्टेप फॉलो नहीं होती है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस नहीं रहते और उनका इतना कुछ प्रॉपर वर्किंग भी नहीं रहता। स्मॉल कैप में मतलब ज़्यादा एम्प्लॉयज से ज़्यादा काम किया कर ला लेते, ठीक है, एक आदमी 2 लोगों का काम कर लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बुक मेंटेन रहती है हर प्रोजेक्ट के स्टार्ट में, वहाँ पे प्रोसेस फ्लो रहता है, क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन रहती है, वहाँ पे क्लाइंट की डिटेल इन्फॉर्मेशन रहती है, मतलब हमारे स्टेक होल्डर्स कौन है, इस स्टेक होल्डर्स का वहाँ पे उस कंपनी में डेजिग्नेशन क्या है, राइट, हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन है उसमें से। स्टेक होल्डर्स तो हमारे 4 है, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कोई एक ही पर्सन रहेगा जो हमसे जिसको हम नॉर्मली डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिसको डेली भी हम मेल भेज सकते हैं कि हमको ये समझा नहीं, इसका बताओ, या फिर उसको बोल सकते हैं कि आज थोड़ा मतलब एक 1-1.5 हफ्ते तक स्टार्टिंग में इनिशियली आप डेली कॉल पे आओ, हमारे कॉल पे भी आप आओ, कॉल पे मतलब मीटिंग पे, ठीक है, कॉल बोल रहा हूँ मतलब मीटिंग पे आओ, टीम्स मीटिंग रहती है नॉर्मली, तो मीटिंग पे आओ एंड देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन टू द पीओसी। तो वो सारी डिटेल्स जो रहती है ना, वो क्लाइंट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स अपना एक बुक में मेंटेन रहता है, ठीक है। हर कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट नेम रहते हैं, सो आई विल नॉट टेक एनी वन नेम बुक्स के, ठीक है। और उसके बाद फिर अपने कंपनी में कौन से लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है, व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन टू एवरीवन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आप लिखते हैं ना रिज्यूम में, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्चुअल में जो रहती है ना, वो ये बुक में प्रॉपर लिखी रहती है। बताऊंगा आपको जब प्रोजेक्ट देखेंगे अपन, वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर किसी को असाइन रहते हैं कि ये इसका काम है, इसको करना ही है कंप्लीट, ठीक है। इनकेस अगर कुछ प्रोजेक्ट फटा, आपका प्रॉब्लम आया, तो जो पोजीशन पे प्रोजेक्ट अगर आपका ये हुआ है, कुछ प्रॉब्लम आया, एस्केलेशन हुआ है क्लाइंट से, एस्केलेशन एक टर्म रहेगी बताने की। एस्केलेशन क्या रहता है, कुछ आपने क्लाइंट को काम करके दिया और वहां से उनको काम एक तो पसंद नहीं आया, या फिर काम में कुछ एरर है, डेटा में एरर है, या फिर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो वहां से एस्केलेशन होता है प्रोजेक्ट का। एस्केलेशन हुआ कि फिर से अपने को करके देना पड़ता है, अच्छा, लेकिन एस्केलेशन होना ये अच्छी बात नहीं रहती है प्रोजेक्ट के लिए। अगर एस्केलेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आपकी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो रही है, राइट। तो कंपनी विल नॉट टॉलरेट इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ एस्केलेशन। वो थोड़ा मतलब एक डिफेमेशन जैसा हो जाता है कंपनी के लिए कि अपने कंपनी में एस्केलेशन का रेट ज्यादा है। कम से कम एस्केलेशन होना चाहिए, तो पहले ही देते वक्त ही अपन अच्छा काम करके देते हैं। मॉडल बना के देंगे, तो अगर आपने मॉडल बना के दिया, ट्रेनिंग टेस्टिंग में अच्छा काम कर रहा है, और वैलिडेशन में उसने अलग ही काम किया, क्योंकि क्या हुआ, वैलिडेशन में उसको ऐसा डेटा ही नहीं मिला। जैसे ट्रेनिंग के वक्त जिस डेटा से आपने मॉडल को ट्रेन किया और टेस्ट किया, और वैलिडेशन के वक्त क्या हुआ ना, वैलिडेशन के वक्त डेटा ही चेंज हो गया। डेटा चेंज हो गया मतलब कि फीचर नहीं चेंज हुए, फीचर चेंज हुए तो वो रन ही होगा नहीं मॉडल, लेकिन जो फीचर्स है, सपोज लेट से ए फीचर था, ठीक है, ए फीचर में वैल्यूज थी, एक नाम ही लिख लेते हैं अपन, ठीक है, एक लिखते हैं अपन नाम फीचर का, ठीक, एबीसी फीचर है, ठीक है, उसके अंदर वैल्यूज थी पी क्यू आर। इससे आपने मॉडल को ट्रेन कर दिया, यू हैव ट्रेन दी मॉडल ऑन दिस फीचर, और वैलिडेशन डेटा में कैसा था, एबीसी फीचर तो था, लेकिन वैल्यूज क्या थी वहां पर, पी एन टी। देखो उसको ये वैल्यू दिखी नहीं ना मॉडल को, एन और टी वैल्यू उसको पता ही नहीं है क्या है, तो ये वर्क करने वाला है क्या मॉडल, विल दिस मॉडल वर्क, व्हाट डू यू थिंक। अच्छा ये बताओ, ये मॉडल रन होगा क्या, अगर टेस्ट डेटा ऐसा दिया और इनपुट ऐसा दिया, तो रन होगा मॉडल, नो सर। कहाँ पे एरर आएंगी, एन और टी पे। एनओटी तो उसको पता नहीं, ठीक है। तो जब आपने डमीज बनाए होंगे, ठीक है, जब आप डमीज बनाते हो, तो आपने पी के लिए डमी बनाया है, क्यू के लिए बनाया, आर के लिए बनाया, एनओटी के लिए आपके पास डमी है क्या, है नहीं अवेलेबल, ठीक है। तो एक तो वहां पे अगर यहाँ पे ज्यादा रहेंगे आर, तो इस केस में क्या है, लेंथ का इशू आएगा, ठीक है। अगर एनटी का बना दिया तो रन भी हो जाएगा, लेकिन गलत रन होगा, ठीक है। लेंथ सेम है तो तीनों के डमी 3 ही बने सपोज इन केस, तो 3 डमी बने तो लेंथ तो मैच हो गई, लेकिन इन्फॉर्मेशन गलत गई, एन की इन्फॉर्मेशन क्यू को जा रही है, टी की इन्फॉर्मेशन आर को जा रही है, इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग। लेकिन अगर यहाँ पे अगर लेंथ अगर ज्यादा है, तो उस केस में वो तो रन ही नहीं होगा, क्योंकि लेंथ मैच नहीं हो रही डमी के साथ, और आपने जो वैलिडेट करने के लिए डेटा लिया, तो वहाँ पे रन ही नहीं होगा। ये देखते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, तो इस टाइप से भी एरर आती है। तो ये जो है ना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। आफ्टर दैट प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी, प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी आपने कौन सी मेथोडोलॉजी आप बताइए, आपको पूछते होंगे कि आपका प्रोजेक्ट का एजाइल था, स्क्रम था, कैसा था, आपने कौन से बताया, आप बताओ, आप ही बताओ इसको। प्रोजेक्ट सर मेथोडोलॉजी
सर प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी मुझे एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने बोला हम नहीं फॉलो करते थे, तो उसी नहीं चीज से मेरा रिजेक्शन हुआ था। हाँ। हाँ, दैट्स वाई मैं बता रहा हूँ, ऐसा बोलना नहीं कभी किसी को कि हम फॉलो नहीं करते। हर कोई फॉलो करता है, ठीक है। स्प्रिंट में हर कोई काम करता है, कोई डेटा साइंस की टीम ऐसी नहीं है जो स्प्रिंट में काम नहीं करती, ठीक है। स्प्रिंट मतलब कि पर्टिकुलर प्लान रेडी है, उस हिसाब से काम होता है। एकदम डायरेक्टली कैसे भी काम कर रहे कोई काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। पहले क्या होता था, पहले के जो ये रहते थे टीम रहती थी, वो कैसे काम करती थी, वो उनके मॉडल रहते थे, वाटरफॉल मॉडल, मुझे बहुत सारे मॉडल जो सीएससी बैकग्राउंड के होंगे उनको पता होगा, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल क्या रहता है, एक आई थिंक स्प्रिंग करके था कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा। इस टाइप के मॉडल थे जो अभी फॉलो होते हैं, वो एजाइल, स्क्रम, इस टाइप की जो मेथोलॉजी है वो फॉलो होती है। उसके अंदर क्या होता है, काम करके दो फर्स्ट स्प्रिंट में, एक स्प्रिंट में काम हो गया, काम अगर थोड़ा प्रॉब्लम रहा तो फिर से क्या होता है, हम थोड़ा वापस जा सकते हैं वहां पर, राइट। अदरवाइज क्या होगा, नेक्स्ट स्प्रिंट में जाए, ठीक है। और नेक्स्ट स्प्रिंट में जो प्रीवियस आउटपुट है वो वैलिडेट होके जा रहा है, आपका डब्ल्यू होके जा रहा है। डब्ल्यू मतलब वीकली बिजनेस रिव्यू, वो होके जा रहा है, ठीक है। वहां पे कॉल पर डिस्कशन होके जा रहा है, मतलब क्लाइंट इज सेटिस्फाइड एट दिस पॉइंट। तो ऐसे से स्टेप बाय स्टेप ये होते हैं। जब सिनेरियो प्लानर बनता है तो वहाँ पे साइन करके लेते हैं कंपनी वाले कि आपको ये सिनेरियो प्लानर ओके है, हम ऐसा ही बना के देंगे आपको, ठीक है। वो जो एक्सपेक्टेशन रहती है, एक्सपेक्टेशन मिसमैच ना हो, इसलिए वो सारी बातें होती है, ठीक है। तो अक्षय, अब नेक्स्ट टाइम से जब भी इंटर रहेगा ना तो बताओ, ठीक है, जो भी आपका मेथोडोलॉजी रहेगा, आइदर इट कैन बी Yeah. एजाइल, No, ठीक है। sir. Currently, I'm working, but in ओके ओके previous interview, yes. ओके ओके, गुड गुड। तो अच्छा, आपका अभी वर्किंग, फिर आपका प्रोजेक्ट शुरू है अभी? सर मेरे को टीम लीडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, अभी तक तो ग्रेट, प्रोजेक्ट पे नहीं असाइन हुआ। ओके ओके, टीम लीड का डायरेक्टली टीम लीड मिला है ना, सही है। हाँ। करो अच्छे से। टीम लीड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। प्रोजेक्ट अगर कुछ होता है प्रोजेक्ट में तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज टीम लीड, हाँ सर। ठीक है। तो प्रॉपरली वर्क करो वहाँ पर। और अभी जो बता रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट, उस पर ध्यान रखना अगर वर्किंग हो आप तो। आईएस पॉलिसीज, ओके। आईएस पॉलिसीज क्या रहते हैं ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट, जो वर्किंग यहाँ पे लोग हैं और जो नॉन वर्किंग है दोनों के लिए। कभी भी नेवर शेयर योर डेटा आउटसाइड द, नेवर शेयर योर डेटा आउटसाइड। मतलब एक ग्रुप ही होता है, एमएनसी या फिर मिड स्केल कंपनी रहता है। इससे पहले आपको एक तो प्रोजेक्ट से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। सीवियर प्रॉब्लम रहा तो आपको टर्मिनेट कर देते हैं। देयर इज नो लाइक, वहाँ पे कुछ ऐसी दया कुछ रहती नहीं है, ठीक है। डेटा में इशू हो गया मतलब कंपनी हैव टू पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ओके। उनका इतना बड़ा फाइन रहता है, 250 लाइक डॉलर्स, मैं कुछ देखा था 2.5 मिलियन डॉलर, इतना कुछ ऐसा फाइन रखते हैं। आईएस पॉलिसी का वॉलेशन होता है। अगर आपका क्लाइंट यूएस का है, उसका कुछ डेटा पॉलिसी है और आपकी कुछ डेटा पॉलिसी है, अगर आपने उसका डेटा पे कुछ छेड़छाड़ किया या फिर कुछ फॉलो नहीं हुआ या फिर डेटा हुआ तो आपको पे करना पड़ता है कंपनी को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर तो मतलब आईएस पॉलिसीज में नेवर शेयर योर डेटा आउटसाइड द टीम। इन केस अगर मैनेजर ने आपको बोला है कि मुझे डेटा इस पर्सन पर्टिकुलर भेजो, ठीक है, तो आउटसाइड ऑफ योर टीम है, ऑलवेज कीप मैनेजर इन लूप। लूप मतलब सीसी, सीसी में रखना है ईमेल पे, वो रखना है उनको। मतलब आप जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो डिवाइस, ठीक है, उनको सीसी में रखो। डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर सेल्फ। ऐसा होता है कि आपके ऊपर फिर आ जाता है कि आपने क्यों किया ऐसा, क्योंकि मैनेजर लोगों को पहले टाइम नहीं रहता, वो कुछ बोल देते हैं फिर चले जाते हैं, राइट। तो ऑलवेज नेवर शेयर डेटा आउटसाइड ऑफ टीम। सेकेंड थिंग इज, अगर आप किसी के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, मतलब जैसे इफ यू आर वर्किंग ऑन क्लाइंट साइड, ठीक है, आपने क्लाइंट साइड में काम किया, क्लाइंट के वीएम पे काम कर रहे हो आप, वर्चुअल मशीन पे, ठीक है। वहां से डेटा आप ईमेल भी नहीं कर सकते आपके कंपनी के मेल आईडी पर, ठीक है। आपके दो मेल आईडी रहेंगे, ठीक है। अगर आप दो साइड में काम कर रहे हो, क्लाइंट साइड एंड कंपनी साइड, तो आपका कंपनी का एक मेल आईडी रहता है, तो @ आपकी कंपनी का नेम रहेगा उसके अंदर। एक सेकंड रहेगा आपके पास क्लाइंट का रहेगा मेल आईडी, ठीक है। तो क्लाइंट का जो नेम रहेगा उसके अंदर क्लाइंट नेम रहेगा,
इस टाइप से आपके पास 2 मेल आईडी रहेंगे। आप ये भी नहीं कर सकते कि आप क्लाइंट एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो और वहां से कुछ आपने मेल कर दिया डेटा फाइल या फिर कुछ आपकी कंपनी पे, तो वो भी डेटा वायलेशन होता है, उस केस में भी आपका टर्मिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, ये चीजें पता नहीं रहती, तो जब नए नए जाते हैं तो ऐसी गलतियां कर देते हो, इसमें जब 8-10 महीने 1 साल की मेहनत रहती है आपकी पूरी एक दिन में चली जाती है। मैंने लास्ट रिवीजन बैच में देखा एक बच्चे को, उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, लग गया, फिर से नेक्स्ट 3-4 महीने बाद ही उसका प्रॉब्लम हुआ। तो प्रॉब्लम कुछ वैसे होने नहीं चाहिए, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। ओके, इसको आप ध्यान से, अगर आपने ये फाइल भी आपको शेयर करूंगा मैं, एक बार गो थ्रू करना इसको। फाइन। थर्ड पॉइंट इज डू नॉट डाउनलोड एनीथिंग ऑन योर सिस्टम। डू नॉट डाउनलोड एनीथिंग ऑन योर सिस्टम। ये फिर डाउनलोड नहीं करना तो फिर आप बोलेंगे हमको सॉफ्टवेयर का काम ना तो कैसे करेंगे। उसके लिए टीम रहती है, आईएस टीम रहती है, वो डिफरेंट टीम। उसको आपको एक ये करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आई नीड दिस सॉफ्टवेयर, आई नीड दिस पर्टिकुलर पैकेजेस। आपको जो रहता है ना मशीन लर्निंग, आप जुपिटर नोटबुक में इंस्टॉल करते हो, पांडास नंपाई तो इंस्टॉल ठीक है, लेकिन अगर आपको एक लाइब्रेरी लगी जो इंस्टॉल नहीं है ऑलरेडी, आपको चाहिए, तो उसके लिए भी आपको रिक्वेस्ट करनी है, खुद से डाउनलोड नहीं करनी है। खुद से डाउनलोड करके यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। कभी भी इंडस्ट्री में जा रहे हो तो सबसे पहले देखो, ये जो मैं रूल बता रहा हूँ ये सारे लागू होते हैं एमएनसी एंड मिड स्किल कंपनीज पे। ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी इतना फॉलो नहीं करते। जो मेरे दोस्त है स्मॉल कैप कंपनी में, उनको खुद को ही एडमिन कैसे दे देते हो कि तुम ही करते बैठो, लेकिन सिर्फ करके दो काम। ठीक है, तो नॉर्मली आप भी जब लगेंगे ना, तो नॉर्मली मिड स्किल में ही लगते हैं नॉर्मल लोग। स्मॉल कैप में जाना भी प्रेफर नहीं करते, कुछ कुछ जगह पे जा रहे हैं तो फिर आपका थोड़ा मतलब ये रहता है कि वर्क थोड़ा ज्यादा रहेगा और थोड़ा मतलब सीखने को बहुत मिलता है, लेकिन स्मॉल कैप में विल गेट लॉट्स ऑफ सर लर्निंग। सम कनेक्शन इश्यू आते हैं, मींस सम आरडीपी से कैसे कनेक्ट करते हैं, रस्टेक से वगैरह, तो थोड़ा आईपी एड्रेस वगैरह कॉन्फ़िगरेशन, तो उसको कैसे कर सकते हैं अपन कंपनी में, क्योंकि अपने को ऑलरेडी 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो अपन उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते नहीं चीज कि हाँ, कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है ना आईपी एड्रेस वगैरह का, तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपकी कंपनी में टीम है क्या, आईएस टीम वगैरह ऐसा कुछ जो ये सर आईटी टीम है सर। राइट। तो आईटी टीम को क्या करना पड़ता है, देखो आईएस कॉन्फ़िगरेशन भी आपने खुद से नहीं करना। आपको पता भी होगा ना, तो भी आप क्या बोल सकते हैं वहां पर कि मुझे पता था, लेकिन लाइक प्रीवियस कंपनी में क्या था कि वो खुद से करके देते थे, हमको कुछ नहीं करना पड़ता था। हमने किया तो फिर उनको मतलब हमको ये मेल आया था कि यू कैन नॉट डू दिस थिंग्स। ओके, एडमिन राइट्स नहीं थे, तो आप उनको सीधा बोलते जाओ कि प्लीज लाइक हमको ये करो करके दो करके कॉन्फ़िगरेशन पूरा। खुद से नहीं करने का, ये बात रहती ना, ये आपका काम ही नहीं है करने का। जो कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम कॉन्फ़िगर करना, इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना, ये आपका काम नहीं रहता, ये आईटी टीम वालों का ही काम रहता है। उनको यस सर, हायर वीपीएन का वगैरह उन्होंने एक्सेस दिया रहता और वो बोलते कि ये वीडियो वगैरह गो थ्रू करो और इससे एक्सेस कर लो सिस्टम वगैरह। यस, हाँ, वीपीएन वगैरह का एक्सेस दे देते आपको, तो वीपीएन सेट कर सकते हो। ठीक है, ओके, वी कैन रेज टिकट। हाँ, टिकट विष्णु आपने जो बोला, टिकट रेज करना पड़ता है सर, बरोबर, टिकट रेज करना पड़ता है। फाइन, तो तो ये सब कुछ आईएस पॉलिसीज में आता है। ठीक है, आपके, हाँ, और एक बात, आपके पर्सनल मेल आईडी पे आप कुछ भी शेयर नहीं कर सकते। डू नॉट शेयर एनीथिंग ऑन योर पर्सनल मेल आईडी। मतलब आपने कंपनी से आपके मेल आईडी पे कुछ मेल डालना है, ठीक है, अगर आपको कुछ सैलरी स्लिप ही चाहिए तो आपको पहले परमिशन यानी ये करना पड़ता है, आपका मेल ब्लॉक हो जाता है। इफ यू आर डूइंग सच थिंग्स योर मेल विल बी ब्लॉक। फिर वो चेक होता है कि इसने प्रॉपर कुछ यानी जो डेटा भेज रहा है बाहर, वो उसका सिर्फ सैलरी स्लिप ही है, फॉर्म 16 ही है, या फिर कुछ और है, कुछ और रहा उसके अंदर, फिर वो वायलेशन हो गया आईएस पॉलिसी का। ठीक है, तो ये भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस आर सम बेसिक थिंग्स दैट मतलब ये मुझे शेयर करना था आपसे। ये बताते नहीं है, मतलब ये पता नहीं रहता बच्चों को, जब इंटरव्यू स्कूल जाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, टिकट कैसे रेस करने का? हाँ, टिकट रेस करने का उसका ये रहता है टिकट संतोष, टिकट कैसे रेस करते हैं, पोर्टल रहता है हर कंपनी का। ठीक है, हर कंपनी के पोर्टल में वहां पर रहता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो आपको उसके लिए एक ऑप्शन रहता है कि प्रॉब्लम की लिस्ट रहती है कि ये प्रॉब्लम है, तो मुझे सपोज इंस्टॉलेशन चाहिए सॉफ्टवेयर का, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन सिलेक्ट करो वहां पर। देन आफ्टर दैट यू कैन रेज द टिकट। टिकट रेज करना मतलब क्या है, वो कंप्लेंट डालने जैसा। ठीक है, फिर उसके ऊपर रिजॉल्व होता है। अक्षय ने किया होगा, राइट अक्षय, ऐसे किया आपने? हाँ सर, टिकट कंपनी का आईपी एड्रेस से ही किया था। हाँ, तो उसका, हाँ, तो उसका मेरे को एडमिन राइट्स वगैरह मिला था, मींस मिले एडमिन साइट में राइट है मेरे को, तो मैं ही करता हूँ। ठीक है, राइट।
करो, ऑल द बेस्ट, अच्छा काम करो कंपनी में, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज Yes, फॉर sir. टुडे, Thank ठीक है। मैंने ये जो बातें बताई, आप एक इस पे फोकस करो, डेटा आईक्यू पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड टू एंड पूरा प्रोजेक्ट डेटा आईक्यू पे मैं यहाँ पे पॉसिबल नहीं है लेना, ठीक है, कि पूरा प्रोजेक्ट नहीं ले सकते पूरा एक प्रॉपर फ्लो में जाके, तो दैट विल टेक 2 to 3 days, और मेरे पास एक्सेस भी आज के दिन का ही है, ओके। तो प्रैक्टिस इट, आपको फैमिलियर कर दिया मैंने टूल के साथ। यू कैन गिव द इंटरव्यू फॉर 1 year, जो भी 1 year का इंटरव्यू रहेगा डेटा आईक्यू का, आप दे सकते हो। आपका कॉल्स में भी देखो, ऐड करके देखो, कुछ दिनों तक 10-15 दिन में अगर आप ऐड करते हो तो कॉल्स, एक भी कॉल आया आपके ऊपर डेटा आईक्यू का, तो दैट इज लाइक अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि उसके अंदर कंपटीशन कम है, ठीक है। और आपका मशीन लर्निंग अच्छा है, मशीन लर्निंग पैटर्न आपने ऑलरेडी अच्छा किया है, तो वो क्वेश्चन तो आप अच्छे से आंसर करेंगे, राइट। So this is for today. Any questions from your side? You can ask. We'll stay here for 5 minutes. यस सर। सर एक क्वेश्चन पूछते हो इंटरव्यू सॉरी सर कि डेली वर्क और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, डेली वर्क क्या रहता है? डेली वर्क डिपेंड रहता है आपका प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। डेली वर्क आपका प्रोजेक्ट कौन सा शुरू है अभी, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो जब अपन प्रोजेक्ट का क्लास लेंगे ना, प्रोजेक्ट एक्सटेंशन का, उसके अंदर मैं डिटेल में बताऊंगा पूरा कि स्टार्टिंग से कैसे करते हैं, ठीक है, क्या क्या आपका वर्क रहता है, रोल्स क्या रहते हैं। तो दैट मीन 1 or 1.5 hour का क्लास रहेगा अपना, वो पूरा प्रोजेक्ट पे रहेगा कंप्लीट। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? हॅलो सर, आणि आपल्याला जेव्हा कॉल येतात तेव्हा विचारतात टोटल एक्सपिरियन्स आणि रेलेव्हंट एक्सपिरियन्स, सगळं सेम सांगायचं तेव्हा कसं सांगायचं? तेव्हा सांगायचं की मी जेव्हा स्ट्रीम मधलं ज्यामध्ये कंपनीत जॉईन झालो, ते पायथन डेवलपर जरी झालो मी जॉइन, ठीक है, आप ज्वाइन अगर पायथन डेवलपर भी हो कि एनालिस्ट भी हुए, तो आपका जो स्ट्रीम था ज्वाइन होने का वो डेटा साइंस ही था आपका वर्टिकल, ठीक है। आपका वर्टिकल डेटा साइंस का था, तो आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो रिलीवेंट है, ओके। तो यू कैन लाइक बोल सकते हैं कि पूरा रिलेवेंट एक्सपीरियंस बताने का, ऐसा नहीं बोलना 3 year में से 2 year की एक्सपीरियंस है, नहीं, ऐसा कभी मत बोलो, कंप्लीट बोल दो 3 years का एक्सपीरियंस है, रिलेवेंट भी वही है एंड एक्चुअल एक्सपीरियंस भी वही है, ठीक है। ओके सर. डेटा रोबोट टूल इज सिमिलर टू, आई डोंट नो ऋषभ, डेटा रोबोट टूल के बारे में मैंने सुना नहीं है, एक बार देख सकते हैं, मैं सर्च करके बताऊंगा आपको कल, ठीक है। डेटा रोबोट ना, हाँ सर, नौकरी में देखा था मैंने, ऑप्शनल ऐसे देखा था। हाँ, मैं मतलब मुझे नहीं पता डेटा रोबोट क्या है, तो एक बार मैं सर्च कर लूंगा, ठीक है, कल बताता आपको क्या है तो डेटा रोबोट। सर एक क्वेश्चन था हाँ। कि मुझे लाइक 3.5 years का एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ एंड वेलोसिटी से मुझे रिज्यूम में डायरेक्टली एज अ डेटा साइंटिस्ट ही दिखा है। नहीं चेंज कर लो, रिज्यूम में डायरेक्टली, रिज्यूम में नहीं, रिज्यूम में कैसा है वो, रिज्यूम में आपका करंट डिजिग्नेशन रहता है। हाँ। तो करंट डिजिग्नेशन ठीक है, करेक्ट दिया उन्होंने, कुछ रॉन्ग नहीं दिया आपको। तो करंट डिजिग्नेशन आपका क्या है, डेटा साइंटिस्ट है, लेकिन जब आपको पूछते हैं इंटरव्यू में कि आपका जब ज्वाइन किया तो आपका डिजिग्नेशन क्या था, तो आप बोल सकते हैं कि एनालिस्ट करके ज्वाइन किया, ये सबसे बेस्ट आंसर रहेगा। ये हर कंपनी में एनालिस्ट की पोजीशन रहती है, ओके, ऐसा बोल सकते हैं, वो मत चेंज करो, ठीक है, वो correct है। सर हाँ, इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करेंगे, जैसे कि वो बोलते हैं कि आप मतलब नॉन बैकग्राउंड थे आप, तो फिर इसमें कैसे आए, कैसे कन्वर्ट हो हाँ। गए? देखो, सबसे पहले क्या रहता है, जब इंटरव्यू का स्टार्ट होता है तो बोलते हो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में मैक्सिमम बच्चे जब भी हम इंटरव्यू लेते हैं तो पता चलता है कि वो क्या बोलते हैं कि यू हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड बी फ्रॉम दिस कॉलेज एंड इन दिस ईयर 2015-16 एंड फ्रॉम माय ब्रांच वाज मैकेनिकल। ये बताने का जरूरत ही नहीं था, ठीक है, सबसे पहले बात, क्योंकि आप एक्सपीरियंस करके जा रहे हो, 3 साल का एक्सपीरियंस आपको, तो नो वन विल आस्क अबाउट योर ब्रांच, ठीक है। अगर उन्होंने ब्रांच के बारे में पूछा तो आप बोल सकते हो कि इनिशियली आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम लाइक मैकेनिकल सिविल, but like I was like interested in the data science field, and then I have done some courses and like I have shifted to this particular industry, IT industry। तो ये आपका फ्लो होना चाहिए कि मैंने कोर्सेज किए और मुझे इंटरेस्ट था इसके अंदर, इसलिए मैं शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो कोई इसके ऊपर क्रॉस कुछ नहीं होती, नहीं, राइट। लेकिन ऐसा बताना नहीं चाहिए, सबसे पहले जो आप इंट्रोडक्शन देते ना कि आई एम फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, तो आपने तो एक क्वेश्चन क्रिएट कर लिया ना इंटरव्यू के लिए। मैंने क्या बोला, इंटरव्यू को इतना ही बताओ, इतना ही बोलो कि उसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो पता है वो पूछेगा, ठीक है। लास्ट का जो आपका रहेगा ना, इज इट सेम टू यस्टरडेज लिंक, ओके। तो लास्ट का जो आप आंसर देंगे ना, जो एक क्वेश्चन का आंसर आप बता रहे हो, अगर आपको 2-3 मिनट का आंसर है तो लास्ट का जो 30 सेकंड में जो आप बताएंगे उसके ऊपर ही नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है। आप देखो नहीं तो ऐसे ही मेंटेलिटी रहती है इंटरव्यू की, या फिर ह्यूमन टेंडेंसी वैसी है, ओके। सो आई हॅलो. जस्ट अजित, सॉरी, हा सर, मला आहे ना लास्ट इंटरव्ह्यू मध्ये विचारलेलं होतं की आपण मॉडेल ट्रेनिंग साठी कोणकोणते अल्गोरिदम यूज केले.
मी सांगितलं की लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसिजन ट्री, ॲडाबूस्ट आणि रॅन्डम फॉरेस्ट. मग त्यांनी विचारलं की ॲक्युरसी किती आलेली होती. मी सांगितलं आम्ही मॅक्झिमम ॲक्युरसी घेतली, ॲडाबूस्टची घेतली 86% होती. हा करेक्ट. मग ते म्हणे की एक्झिबूस्ट का यूज नाही केलं म्हणे, हा त्याची एक्झिबूस्ट ॲक्युरसी बेटर आहे. हा बेटर आहे बरोबर. मग मी म्हटलं ते डोमेन एक्सपर्टीजने ठरवलेलं होतं. नाही ते नाही म्हणे नाही एक्झिबूस्ट ते हा सांगतो मी ते तुला. म्हणे की तू डोमेन एक्सपर्टीज होता म्हणे तुझ्या प्रोजेक्टमध्ये. बरोबर. म्हटलं असं नव्हतं, सिनियर पर्सन पण होते आणि नाही त्यांनी जे सांगितलं ते फॉलो केलं. नाही म्हणे असं नसतंय म्हणे. हा नाही असं नाही राहत. मला नाही माहिती मग ते. नाही नाही असं नाही राहत ते. ॲडाबूस्ट यूज करताना तुम्ही बुस्टिंग यूज करताना ॲडाबूस्ट तर एक्झिबूस्ट आपण ग्रेडियंट बुस्टिंग यूज करतो. ठीक आहे. ॲडाबूस्ट अच्छा. पेक्षा पण चांगली ॲक्युरसी त्यात येते. आणि तुम्ही हे जे अल्गोरिदम यूज करता लॉजिस्टिक वगैरे हे तर यूज केले आहे सांगायचं. बट अच्छा. ॲडाबूस्ट यूज केला आणि एक्झिबूस्ट यूज नाही केला हे थोडं खूप म्हणजे चुकीचं वाटतं, किंवा ग्रेडियंट बुस्टिंग यूज नाही केला तुम्ही हे चुकीचं वाटतं. त्यामुळे अच्छा. हा. कारण की ते ऍडव्हान्स अल्गोरिदम आणि खूप चांगला रिझल्ट देतात. आणि ते कसं आहे ते माहिती काय, म्हणजे डेटा जर तुमचा प्रॉपर नसेल ना, अच्छा. त्यांना स्किलिंग रिक्वायर्ड राहत नाही, त्यांना आउटलायर फरक पडत नाही. त्यानंतर ते स्वतः पण थोडे म्हणजे चांगले प्रॉपरली वर्क करतात. लर्नर पण खूप